Brigadier PK Singh, sir, are you there? Hello. Am I audible to you, sir, Professor Brigadier PK Singh, sir? Good afternoon, Professor Surya Prakash, sir. Am I audible to you? Professor Surya Prakash, sir, am I audible to you? Uh, uh, Mr. Harihara, am I audible to you? So you're clearer. Okay. Okay, we shall be starting. We shall start this program shortly. Now, can you hear me now? Ajit, you are not audible. I cannot hear anything. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. I mean, so Professor Surya Prakash, sir. Yes, Ajit ji. आपकी आवाज नहीं आ रही है. So, sir, shall we start? Yeah, please, please. Okay. Brigadier PK Singh, sir, am I audible to you? गुड आफ्टरनून अजीत सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, जी. ओके सर, थैंक यू. PK Singh, sir. You are not audible. I cannot hear. मेरी आवाज आपको आ रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है. पीके सिंह साहब अपना स्पीकर चेक करिए. अजीत इज ऑडिबल. सेटिंग चेक करूंगी. हम स्पीकर यहाँ पे. हाँ, हेलो. PK Singh, sir, am I audible now? जी जी.
Okay, can you hear me on mobile now? Yes, sir, you are audible. You are already audible, but I guess you cannot hear us. I can hear you on mobile now. There will be something on the Okay, system. okay. So, sir, shall we start now? You please start, sir. Okay, okay, okay. Okay. So, Audible आवाज नहीं आपकी आवाज a very good afternoon to आपकी all आवाज the distinguished speakers, नहीं panelists, and our participants who have joined here virtually for this webinar on lightning and thunderstorm risk reduction and safety measures, which is being jointly organized by National Institute of Disaster Management that comes under the Ministry of Home Affairs, Government of India, and Uttar Pradesh State Disaster Management Authority, Government of Uttar Pradesh. So I, Ajit Batham, young professional in Center for Early Warning in Communication under the Division of Geometeorological Risk Management, uh, uh, welcomes you all here on behalf of National Institute of Disaster Management. So before proceeding, there are some general guidelines for the participants which I would like to mention here. So participants may please note that to be eligible for a participation certificate, it is mandatory to enroll in this program, and to enroll yourself in this program, you should visit to NIDM training portal and find this program particular with this the topic of this program. And so I would like to set some context for this particular webinar that in the recent months, not years, I would mention the months, in the recent months, it has been observed that number of strikes, lightning strikes have also risen sharply. At least 33 people have lost their lives in northern states in the thunderstorm and heavy rain incidents since the onset of this pre-monsoon season. So keeping in view of the above, NIDM and UPSDMA has taken the hands to conduct this webinar, and where the experts on the relevant field will deliver their knowledge on to make the community and administration aware for this thunderstorm and lightning phenomenon. So for the for the welcome address, now I would like to call Brigadier Pramod Kumar Singh, sir, who is the senior consultant from UP State Disaster Management Authority. Now, I would request sir to kindly welcome the audience. Okay, thank you, Ajit. Thank you very much. I express my sincere gratitude to National Institute of Disaster Management, and in particular, Professor Surya Prakash ji, who is heading the GMR division in the NIDM, for running this program in collaboration with UP SDMA on a very, very alive and sensitive subject of lightning and thunderstorm, with a greater emphasis on the risk reduction and safety measures. I also take the opportunity to welcome the participants. I already see the numbers, already more than 200, 212 to be precise, and I'm sure जब तक हम लोग इस सेशन प्रॉपर पे पहुंचेंगे, this number would be much larger. The subject of lightning assumes great significance, and more so for the state of Uttar Pradesh, in view of alarming number of casualties and the losses which we suffer. Needless to say, there is a reason where the vice chairperson himself has taken a particular interest in the subject. He is not only involved in the project, but also driving the project personally. The subject is today we have very prominent and reputed speakers to speak on the subject. We have Dr. Soma Sen Roy, scientist F and the heading nowcasting in IND New Delhi,
is going to talk on the subject of newer areas, or if I may say, the advancement in the weather-related early warning system. We have Mr. Harihara Kumar Devada. He's a professional at NIDM. He is going to talk to us on the subject of national policy and the guidelines on the subject. And we have Colonel Sanjay Srivastava, who is chairman of Climate Resilient Observing Systems Promotion Council, a leading agency in the country as far as the lightning and the thunderstorm is concerned. He himself is highly reputed and widely known for the work he has done in the field. I'm more than sanguine that at the end of the session, we would have many positives and the takeaways, not only for the state and the districts, but for the block level, at the villages and the community, at the grassroots level, which actually matters for our drive towards the mitigation effort. I wish everybody all the best for the session ahead. Thank you. Jai Hind. Okay, so thank you so much, sir, for your wonderful welcome address for this webinar. And before moving ahead, I would like to inform the participants that Brigadier Pramod Kumar Singh is the Vishit Seva Medal and who has 36 years of experience in working Indian Army. And he also served in the counterinsurgency area of northeastern Kashmir as a colonel and brigadier as well. He has also experience of handling disaster situations, cyclones in Andaman and Nicobar Islands, snow avalanches, and landslides in Kashmir. So, thank you so much, sir, for joining with us. And sir, moving ahead, now I would like to call Professor Surya Prakash, who is the head of GMR division, for the special address for this program. And now, before calling Professor Surya Prakash, I would like to give a short introduction to the participants. So Professor Surya Prakash, as I said, currently heading the division Geometeorological Risk Management division at National Institute of Disaster Management. He is also the nodal officer for coordinating with the central ministries and departments for the disaster risk reduction activities. The departments such as and the ministries such as Ministry of Mines, Ministry of Coals, Ministry of Petroleum and Natural Gases, Ministry of Communication, Ministry of Shipping, Ministry and Department of Northeastern States, Ministry of Parliamentary Affairs, Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Labor and Employment, and National Postal Academy as well. Professor Surya Prakash is the faculty in charge of the 6 specialized center at National Institute of Disaster Management centers, namely as Early Warning and Communication Center, Hill Area Development Center, Coastal Disaster Risk Reduction and Resilience, CBRN, Industrial Disaster Risk Reduction, and Cyber Disaster Risk Reduction. He is also a team leader of at World Center of Excellence on Landslide Disaster Reduction. He is also the supervisor and in charge of Flood Monitoring Cell and Emergency Operations Center at National Institute of Disaster Management. So now, may I please request Professor Surya Prakash to deliver a special address for this webinar. Over to you, sir. Thank you, Ajit ji. Good afternoon to all the dignitaries in the inaugural program. With due respects to Lieutenant General Ravinder Pratap Sai ji, Vice Chairman of the UPSDMA, and also our friend Brigadier PK Singh Saab, and other who have joined with us, including Colonel Sanjay Srivastava ji, Mrs. Soma Sen Roy from IMD, as well as our own colleagues, Dr. Harjeet Kaur, Harihar Kumar Gautam, and all other colleagues. First of all, I would like to extend my heartfelt thanks to our Executive Director, NIDM, Shri Taj Hassan ji, IPS officer, who has motivated us, guided us, and permitted us to organize this collaborative webinar together with the UPSDMA. The theme of today's program is very much relevant. As you can see, just yesterday we had the World Environment Day on 5th of June, which was almost the 50th year when that day was decided at the Stockholm Convention.
During the various COPE meetings, as well as during the various IPCC reports, UNFCCC reports, and UNEP reports, it has been very much highlighted that hydrometeorological hazards due to changing climatic conditions will be a big challenge to all of us, particularly in the urban areas as well as in the coastal area, and similar situations will also arise in the hill areas. So all our centers, be it hill area or the coastal area, have to work a lot. This has well illustrated by the recent disasters which happened during the COVID-19 period. Let's take the example of the disaster which happened on 7th February 2021 morning in the Joshimath block of the Chamoli district, when a large rock mass filled along with the glacier body and came down through the river, through the Rantigad to then the Rishi Ganga and Dholi Ganga, thereby causing a death of about 204 persons in that particular disastrous event. Similarly, many other such events have been also reported in the past, be it the Kedarnath Tragedy, which happened on 16th June 2013, or be it Srinagar floods and many other such events. Along with these extreme weather events, one of the major catastrophes which have been happening were related to lightning and thunderstorms. Lightning, in fact, had caused many of the deaths, not only loss of human lives, but I remember there had been many instances where our the properties, particularly related to the electronics and electrical facilities, they also got affected due to lightning impacts. Lightning sometimes had also caused even the forest fires in the forested areas, particularly during the periods of May and June. From April to June, many of the forest fires have been reported due to the low relative humidity as well as the high temperature conditions and dry litter around us. So these lightning events, there are ones from which the loss of human lives can also be prevented and reduced, and many efforts have been made recently, particularly by our nodal agency, India Meteorological Department, which will be highlighted by our resource person Soma Sen Rao, how they have been actually now working to predict and forecast the lightning events in any particular area using the state-of-art technologies. Now, the next is that there are many non-governmental organizations also who are working in this area and continuously making efforts for raising awareness and increasing the preparedness at the community levels. This is equally important, as was said by the former Secretary General Kofi Annan, that an aware, informed, and prepared community is better able to assess its risk, respond and resist to those events and recover at the earliest possible, at the quickest possible, than an unaware, uninformed, and unprepared community. Particularly, I would talk about the infrastructure development, which is taking place at a very fast rate, and more investments are taking place. This kind of the resistance technologies against the lightning events have to be well applied and utilized so that we do not suffer from the economic and social impacts of the lightning events. So overall, all efforts are nowadays being made to share the information related to lightning. IMD had also developed a mobile app, and which is also becoming popular, and they are putting it even in a vernacular language. It has been said to by the Union Home Minister that those applications which are related to disasters, they can also be developed in vernacular languages so that the masses can understand and make use of it in disaster and crisis situations. So there are many attempts which have been made. Our National Disaster Management Authority
had also prepared a plan and included lightning as one of the disasters. This is also included in our relief course and similar other policies and plans as well. So all policies, plans, guidelines, and procedures have the provisions for the lightning events and their impacts, but still we are far away from our national goal of the National Policy on Disaster Management, which was released on 22nd October 2009, which envisages a zero casualty, disaster-free and resilient nation. I wish all the best to all the distinguished speakers, the delegates and the participants of this program, and would urge them to make this webinar bilateral through interactions and discussions with the distinguished experts. And also, I would request, as the Honorable Prime Minister said during Climate Action Summit in New York, that an ounce of practice is much better than tons of preaching. So I would say that whatever key takeaways you have, kindly try to implement, use them into your practices so that the benefits can be accrued out of such knowledge, information, experience sharing, and innovations and technologies or ideas given by the experts. So I wish you all the best, safe, healthy, good quality life on equitable, justifiable, and right-based manner with good fraternity amongst all of us. I'm very sanguine that all these efforts being made through such webinars by NIDM and its partner will surely raise the level of resilience amongst our communities and all concerned stakeholders. So I wish them all the best in their endeavors, and let's try to act as a team. As we say, team means together each achieve more, and continue these efforts. As Vivekanand ji has said, arise awake and stop not till the goal is achieved. So this is a continuous process as envisaged in the Disaster Management Act 2005 also. And capacity development is one of the main objectives of NIDM as per the mandate given by the Act, and also in the National Policy on Disaster Management. So with these words, I thank you for providing me this opportunity and wish you all the best. किसी शायर ने कहा है कि नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं यारो, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे. So we have to change our perspectives and go from risk to safety, towards safety. So we should start this journey and achieve different milestones to reach our destination of zero casualty and disaster-free resilient nation. Thank you very much. All the best to you and all Thank the you, sir. and delegates and participants. Thank you, sir. Thank you for enlightening us through your special address and for the participants. So now for the inaugural address, we have with us Lieutenant General Ravindra Pratap Sahi, sir, who is Ati Vishisht Seva Medal and currently serving as a Vice Chairman of Uttar Pradesh State Disaster Management Authority. उन्हें बुलाने से पहले मैं उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पार्टिसिपेंट्स को देना चाहूँगा. तो रविंद्र प्रताप शाही सर एक युद्ध रणनीति एवं ऑपरेशनल नियोजन तथा कार्य प्रणाली का 4 दशकों का अनुभव लिए हैं. विभिन्न कमान एवं स्टाफ नियुक्ति जिसमें आर्म डिवीजन की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन की कमान, आर्म ब्रिगेड की कमान, आर्म डिवीजन की कमान, भारतीय सेना की सबसे बड़ी स्ट्राइक कोर की कमान जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक और 30,000 टैंक तथा वाहन एवं युद्ध मशीनरी की विशाल रेंज भी शामिल है का इन्होंने नियोजन किया है. कमान मुख्यालय में ऑपरेशनल नियोजन तथा यूएन मिशन में तैनात सैनिकों की देखरेख करते हुए सेना मुख्यालय में निदेशक ऑपरेशनल लॉजिस्टिक के रूप में भी तैनाती इनकी हुई है. स्ट्रेटेजिक नियोजन, बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य टुकड़ियों एवं उपकरणों का संचालन, पूर्वानुमान, इन्फेंट्री प्रबंधन, यातायात एवं ढांचागत विकास का भी बहुत बड़ा अनुभव इनके साथ रहा है. डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज एवं सीनियर और उच्च कमान के विशिष्ट कोर्सों में भाग लिया है.
अपने कोर्स में ब्रिगेडियर की मेरिट में प्रथम होने के कारण आपको नेशनल डिफेंस कॉलेज बांग्लादेश ने कोर्स के लिए नामित किया गया था। यदि मैं इनके व्यावसायिक रूपरेखा का चित्रण करूं तो इन्होंने नवंबर 2015 से अप्रैल 2016 तक मुख्यालय मध्य कमान लखनऊ के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर रहे हैं। साथ ही दिसंबर 2014 से अक्टूबर 2015 तक एज ए कमांडेंट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में इनका पदस्थापना हुई है। साथ ही 2013 अगस्त से नवंबर 2014 तक भारतीय सेना की सबसे बड़ी स्ट्राइक कोर की कमान इन्होंने संभाली है और जून 2010 से जुलाई 2011 तक भारतीय सेना की 3 प्रतिष्ठित आर्म डिवीजन में से एक की कमान इन्होंने संभाली है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही सर को फॉर इनॉग्रल एड्रेस फॉर दिस वेबिनार। ओवर टू यू सर। Namaskar, Jai Hind to everybody who is in this webinar. And I take this opportunity on behalf of Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, who is also the chairperson of UP State Disaster Management Authority, to welcome each and every person who is there connected with us on this webinar. Belonging to Uttar Pradesh, and basically this webinar is being conducted for Uttar Pradesh. I will use both the languages, that is English and Hindi, to talk to you. And because it's very important subject which we have selected in consultation with the NIDM. And for that, I extend a hearty thank to the Executive Director, Mr. Taj Hassan, who is not available with us today for some reason, and of course, Professor Surya Prakash, who has just talked to us on this important subject. Now, coming back to the subject proper, आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश के अंदर जिसमें जो भी डिजास्टर्स नेशनल लेवल के ऊपर अनाउंस किए गए हैं उसमें एवलांच और साइक्लोन छोड़ करके सारे डिजास्टर्स उत्तर प्रदेश में किसी समय के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। एंड इन पर्टिकुलर हमारा प्रदेश जो है फ्लड और उससे रिलेटेड जो भी डिजास्टर्स हैं जिसमें से लाइटनिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जो पिछले सालों में काफी इससे नुकसान हुआ प्रदेश को, और इसको मद्देनजर रखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया था कि एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे कि जीरो इससे इफेक्ट हो और स्पेशली जनहानि कम हो जाए, जीरो हो जाए, माल हानि हो जाए और किसी भी तरीके से पशु हानि को भी रोका जा सके। तो इसके अंतर्गत एक हमने एक्शन प्लान, लाइटनिंग एक्शन प्लान बनाया है जो कि हर जिले में हम भेज चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके ऊपर कार्रवाइयां पूरी हो गई होंगी, और अगर कोई जिले में रह गया है तो उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी उसके ऊपर पूरा कर लिया जाए। क्योंकि जब एक्शन प्लान के ऊपर तैयारी पूरी हो जाएगी तो एक वो पहला कदम है उससे जो भी रुकावटें या तकलीफ आती है किसी हैजर्ड से उसको रोकने के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को कैसे इससे अवगत कराएं, कैसे उनको अर्ली वार्निंग दें और लाइटनिंग होने के बचाव, उससे होने के कारण वो देखा जाए और बचाव के जो तरीके हैं वो भी आम जनता तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहा है। और उसके लिए भी हमने काफी इसके बारे में कैपेसिटी बिल्डिंग कराई है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं, और अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर एक इम्पोर्टेंट जो डिजास्टर है जिससे कि हमारा प्रदेश हमेशा प्रभावित होता है हर साल, उसके ऊपर हमने 2 दिन का एक वर्कशॉप भी चलाया था जिसमें डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स आए थे और उनको बताया गया कि अर्ली वार्निंग कैसे हम आम जनता तक पहुंचाएंगे और जब वार्निंग ऐसी होती है तो उसके दौरान क्या कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं वो क्या करें, जो लोग
गाड़ियों में हैं वो क्या किया रहे हैं, जो बाकी जगह पे हैं, जो जंगल में है जंगल से बाहर निकल जाए। तो सब तरीके के जो इस हैजर्ड से तकलीफ पहुंचाने वाली जगह हैं उसमें क्या करें क्या ना करें की आपको सीख दी गई थी। और आज का ये जो वेबिनार है एक तरह से मैं कहूंगा कि उसको फाइनल टचेस देने के लिए वेबिनार हमने NIDM के साथ मिलकर के ये चलाने की कोशिश की है कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज जिसमें छूट गई थी उससे वाकफियत हो जाइए और उसको जल्द से जल्द अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उसको जमीन के ऊपर उतारने के लिए तैयार हो जाइए। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि इन सब तैयारियों के साथ साथ हमने हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को इंक्लूडिंग ग्राम प्रधान को रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग ब्राह्मणी ऐप, जो कि अर्थ साइंसेस डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जाता है, जो कि 20 किलोमीटर के रेडियस में संभावित आने वाली लाइटनिंग की जो हैजर्ड है उसके बारे में जानकारी देता है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोगों ने अपने अपने इलाके के अंदर अपने अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर सब लोगों को बताया होगा, उसका ज्ञान दिया होगा और उसको कैसे ऑपरेट करना है, और अगर उसमें कोई वार्निंग आती है तो उसके बाद से क्या कार्रवाई होती है उसको उसमें सबको अवगत कराया गया। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने एक स्कूल सेफ्टी कार्यक्रम चलाया था, मुख्यमंत्री स्कूल सेफ्टी कार्यक्रम। उसमें हमने बच्चों को भी सिखलाई दी थी और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये बच्चे जो हमारे यूपी SDM ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, अपने अपने घरों पे जा करके इसके बारे में जरूर बातचीत किया होगा और क्या करें क्या ना करें से लोगों को अवगत कराया गया। इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि पिछले चंद एक वर्षों में जो इससे मौतें हुई हैं, जो डेथ हुई हैं, नंबर कुछ ज्यादा है, लेकिन हाँ हमारे प्रयासों से हर साल मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 वर्ष में जब से मैं इस ओहदे पे हूँ इसमें कमी जरूर आई है, लेकिन वो जैसा कि सुप्रकाश जी ने भी बताया वो हमारे टारगेट से काफी ऊपर है। और क्योंकि जैसा कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, मुख्यमंत्री जी की ये बहुत चिंता का विषय है कि हम इसको जीरो करना चाहते हैं और इसी के लिए हम यथक प्रयासों से हम जन जनता से हम जुड़ गए हैं और इस बार हम कोशिश करते हैं कि इसको जीरो किया जाए। और आप सबकी मदद से आप सबके जो लोग ग्राउंड के ऊपर जाके काम करेंगे उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी इंसान उत्तर प्रदेश में जो है उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि लाइटनिंग आने के जो संभावित जो अनाउंसमेंट होती है उस समय उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे एक अहम बात है कि अगर EW की वार्निंग है, अर्ली वार्निंग है लाइटनिंग की, तो आपको पक्के मकान के अंदर जाकर के शरण लेनी पड़ेगी। ये एक बॉटम लाइन है और इसके बाद पक्के मकान के अंदर अगर आप शरण लीजिएगा तो उसमें लाइटनिंग का इफेक्ट नहीं। दैट इज अ बॉटम लाइन। स्पेशली जो लोग खेतों में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं या खुले में हैं, उनको मैं उम्मीद रखता हूँ कि इससे जरूर अवगत कराया जाए। उसके बाद मैं अभी एक UN ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको और रिलीफ कमिश्नर साहब को उसमें नामित किया था। और उस प्लेटफॉर्म के अंदर अब लोग बात कर रहे हैं रिस्क टू रेसिलियंस। जो रिस्क है उसको रेसिलियंस से मतलब है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि ये जो नारा है ये कोई नया नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने 10 पॉइंट एजेंडा में इसकी उसमें उन्होंने अपना एम किया था कि रिस्क टू रेसिलियंस अपने पूरे देश को, इन पर्टिकुलर जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही बोला है हमारे प्रदेश को भी रिस्क टू रेसिलियंस के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये कार्रवाई हम कागज में जैसे लिख देंगे, लेकिन उसको जमीन पर उतारने में जो लोग हमको DDMA से हर डिस्ट्रिक्ट से किसी भी डिपार्टमेंट से जो जुड़े हैं उनकी मदद की और उनके जरिए ही हम पहुंच पाएंगे। तो इसलिए बहुत अहम सब्जेक्ट है। एक आदमी की अगर जिंदगी हमारे अगर काम करने से बच जाए तो इससे बढ़िया सोसाइटी के लिए कोई काम नहीं हो सकता है। इस चीज के साथ ही मैं अपना
आज का ये जो हमारा आपसे इंटरेक्शन है, मैं इसको बंद करूंगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो आज वेट कर रहे हैं, आप उनकी बातें सुनिए और उसको नोट कीजिए, और मेहरबानी करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर ग्राउंड के ऊपर उतारने के जो भी शेप है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये, और हर जो उत्तर प्रदेश का नागरिक है, चाहे वो बच्चा भी हो, उसको भी ये पता होना चाहिए कि लाइटनिंग का अर्ली वार्निंग मिलने के ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं करनी है। वो आपके जरिए ही हो सकता है, और इसलिए मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा इस बारे में गंभीरता से काम करते हुए, और मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है, हमारे जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी का जो रिस्क रेजिलियंस का जो दायरा है, उसमें हम उसमें शामिल हों और इंश्योर करें कि हमारा प्रदेश किसी भी डिजास्टर से या हैजर्ड से लड़ने की ताकत रखता है, और लड़ करके हम उसको जो उसमें क्षति होनी थी उसको हम जीरो लेवल पे लेकर के आ गए। वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, एंड विश यू गुड सेमिनार, गुड लिसनिंग, and please take your notes, and so that we can ensure that the action plan which has been formulated by UPSDMA on lightning, ये हर DDMA, हर जो ऑफिशियल है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उसके ऊपर कार्रवाई कीजिएगा। अगर आप जो भी उसमें लिखा गया उसकी कार्रवाई कीजिएगा, तो मेरे को पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, ये जीरो डेथ, हम उसको अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद सर, धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. शाही सर, who is the vice chairman of Uttar Pradesh State Disaster Management Authority. आपने अपना अनुभव साझा किया हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपने अपने इनॉग्रल एड्रेस में सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने शब्दों से एनलाइटन किया। धन्यवाद सर। अब हम now moving ahead for the first technical session of this webinar, which will be taken by Dr. Soma Sen Roy ma'am, and she is currently working as a scientist F at Indian Meteorological Division, Indian Meteorological Department, New Delhi, and she is also the heading the department nowcasting division particularly. So now may I request Dr. Soma Sen Roy to kindly proceed with your presentation. Over to you, madam. Thank you, Mr. Ajit. Can I share my presentation? Yes, ma'am. Now you can share. I have given you the presenter rights. Is this visible in the presentation mode, Mr. Ajit? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Namaste और शुक्रिया कि you called me for this technical discussion. ये जो सब्जेक्ट है थंडरस्टॉर्म्स का और उसके associated weather, day by day it is becoming a bigger and bigger challenge for us. Multiple reasons. Climate change is one of them, but population density is increasing. Correspondingly, जो damages का पहले एक दो जने का कैजुअलिटी होता था, आजकल वो बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ हमारा कनेक्टिविटी भी बढ़ रहा है with through media with the remotest of locations. तो रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण से we are realizing how severe, how damaging and severe this thunderstorm is for India. जो शाही साहब ने अभी बहुत अच्छे से बताया कि उत्तर प्रदेश इज ब्रॉड स्टेट, एक चौड़ा सा स्टेट है, जिसमें हर तरह के इवेंट का ज़्यादा वो होता है. We have too many events of different kinds of severe weather over Uttar Pradesh. Thunderstorm is and its associated weather, you will see, is some of the most dangerous, and Uttar Pradesh is a victim of that. So if we start,
much of this is maybe known to many of you, but for those of you who are new to this, a little bit information. Thunderstorms अगर देखते हैं तो होता क्या है कि क्लाउड जब बनता है, it starts to moist air starts to rise. जब moist air 0 डिग्री सेल्सियस आसमान में क्रॉस कर जाता है, then you get small ice particles and supercooled water. When there is a lot of updraft and downdraft inside the cloud, because of which these have frictional interaction with each other, because of which they become charged. बिल्कुल उसी तरह से जैसा if you rub a glass piece with a bit of silk, it becomes charged. Similarly, the ice particles and water droplets become charged. Gradually, what happens is the positive charged regions shift to one side, negatively charged regions shift to another side. When there is a discharge between the two regions, then that is what is called a lightning flash. Or when there is a sound associated with it, that is a thunderstorm. So definitely one thing is clear, every cloud is not a thunderstorm. आसमान में बादल देखने से डरना नहीं चाहिए. When the cloud is crossing 0 degrees Celsius, we start expecting thunderstorms to form. और ये जो पिक्चर में दिखा रहा है कि लोएस्ट जो क्लाउड है, लोएस्ट जो चार्ज का रीजन है, वही डिस्चार्ज ज्यादा जल्दी होता है ग्राउंड के साथ. सो दैट इज व्हाट इज अ sorry, is it it's moving. So जो पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज होता है ग्राउंड के साथ with the because ground is considered infinite sink, तो पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज जनरली थोड़ा नीचे होता है, तो नेगेटिव डिस्चार्ज ज्यादा देखने को मिलता है, बट पॉजिटिव चार्ज भी डिस्चार्ज होता है. तो ये जो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग है, दिस इज व्हाट इज डेंजरस. क्लाउड टू क्लाउड या इंटर क्लाउड या इंट्रा क्लाउड जो लाइटनिंग होता है, जो कि ये वाला लाइटनिंग पॉजिटिव के साथ नेगेटिव या ये पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव, ये बहुत डेंजरस नहीं होता है बिकॉज इट इज नॉट रीचिंग अस. बट व्हेन अ cloud is discharging its charge with respect to the ground, we get a cloud to ground lightning. Unfortunately for us, cloud to ground lightning is much more frequent in the tropics as compared to the extratropics. तो इसीलिए भी ये भी एक कारण है कि बहुत देर से हमें इसका डैमेज पोटेंशियल के बारे में पता चला है. So this is what really happens. You saw here there was a negatively charged region, for example. So if you see the cloud wants to discharge with respect to the ground, so what will happen? There are various parts of the cloud. Cloud's base is not a constant thing. Thoda sa niche, kahin thoda sa uncha, but from many places the cloud is looking for a point on the ground to discharge. So what it discharges against is the highest point. That gives the shortest path. So when the channel of charge, mostly negative charge, it finds a path to the bottom, then the oppositely charged, it pulls opposite charged streamer बोलते हैं. तो ये streamer of charge नीचे से जाता है, ऊपर से lightning का जो cloud का base से जो charge होता है वो आता है, दोनों मिलता है, and that is what causes lightning. तो lightning का जो breadth है एक फ्लैश का only 1 or 2 inches है, मगर at the same time it can heat the air around it by about 30,000 degrees Celsius, and that extreme heating causes the air to expand explosively fast. That is how you get a thunder. It is something like a Diwali cracker, only on a much bigger scale. When we consider thunderstorms, again I'm referring to what really happens associated with thunderstorms. You get hail. So
Uttar Pradesh, for example, Western Uttar Pradesh and Southeast Uttar Pradesh has a high probability of hail occurrence. डस्ट स्टॉर्म होता है स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट यूपी, जहां आपका आगरा, ग्वालियर एंड मीरठ, ऑल दीज प्लेसेस जहां desert winds from Rajasthan comes in, these places get a lot of dust storms. Strong wind climatology, ये आपको most of you I think were pretty much conscious of the 2018 episode over Uttar Pradesh. In 2 episodes, 200 people, 130 people and 200 people died. So that was simply due to very strong winds associated with thunderstorms. They're fewer than lightning, but nevertheless, बहुत dangerous होता है. The other thing is cloud to ground lightning, like I talked to you about. You see that Uttar Pradesh is at the eastern end of, at the western end of a region of very high frequency of lightning. ये पिंक कलर है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइटनिंग, और ईस्ट यूपी स्पेशली बहुत ज्यादा इसका प्रभाव में आता है. टॉर्नेडो की बात नहीं करेंगे क्योंकि वाटर स्पाउट कभी कभी होता है बट बहुत कम होता है. बट if we see the trend of thunderstorm days over India, in the last 50 years, we see 55 years, in fact, we see that lightning, in fact, the thunderstorm frequency has in fact started to increase. So in 1992-93, the frequency was least. After that, frequency started to increase. This box A, which includes Southeast UP. If we see damaging thunderstorms, where do they happen? You see Uttar Pradesh, as I told you, not highly frequent thunderstorm events, but dangerous thunderstorm events. In terms of intensity, in terms of frequency, जो अभी पहले बोल रहे थे कि अप्रैल से लेके सितंबर, this is the period when we get a lot of thunderstorms, especially over Uttar Pradesh. We will come back to the subject of lightning because lightning is the most dangerous phenomenon during this upcoming season. Lightning positive aspect ये है कि lightning helps in nitric oxide combination with oxygen, and that causes nitrogen dioxide. Nitrogen fixation happens due to lightning, and oxygen ozone formation happens also due to lightning. These are two very positive aspects. Lightning helps to dissolve unusable nitrogen and creates natural fertilizer. वो खाद होता है जो एक thunderstorm के बाद जो बारिश होता है, that washes down that nitrogen dioxide into the ground, and that's very good for the plants. साथ ही साथ जो intercloud lightning होता है उससे ओजोन पैदा होता है जो कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है. तो ये दोनों कारण से लाइटनिंग पॉजिटिव है, हमारे लिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है. मगर लाइटनिंग रिलेटेड डेथ अगर देखते हैं तो लाइटनिंग का आप देखिए सबसे ज्यादा लाइटनिंग जैसा अभी बताया बिहार, बंगाल, नॉर्थ छत्तीसगढ़ एंड थोड़ा सा पार्ट ऑफ यूपी है एंड नॉर्थ उड़ीसा. मगर डैमेज वाइज ये देखिए ये फिगर ऑफ ये जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ओरिएंटेड ये रीजन है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट डेथ्स का. सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर देखते हैं तो हमारा 2011 से 2020 में 246 से लेके 304 डेथ्स हुए हैं. तो इसका मतलब जो भी काम कर रहे हैं कुछ हद तक सक्सेसफुल नहीं हो रहा है. हमें कुछ और करना चाहिए जिससे कि ये जो डैमेज डेथ का चल रहा है ये खत्म हो जाए. तो अगर हम देखते हैं कि डैमेजिंग लाइटनिंग कब होता है, ये हर एक थंडरस्टॉर्म के साथ, जैसे मैंने बताया कि थंडरस्टॉर्म मतलब ही उसमें पहले तो हर बादल में थंडर नहीं होता है जैसे बताया. दूसरी बात है हर थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग का प्रकोप ज्यादा नहीं होता है, पर किसी किसी थंडरस्टॉर्म में हम कह सकते हैं कि इस तरह के थंडरस्टॉर्म्स में ज्यादा होता है. वो किस तरह का होता है? जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है. ऐसा थंडरस्टॉर्म तभी मिलता है जब मॉनसून ऑनसेट होने को होता है.
जैसे अगला 15 दिन के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश में मॉनसून का आने का संभावना है। तो इस स्टेज में जो बादल बनेंगे, इन बादलों में जब जैसे मॉनसून का एक सर्ज आता है, उस बादल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है, उसमें आपका क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होने का चांसेस ज्यादा रहता है। दूसरा होता है जैसे मॉनसून ऑनसेट के बाद भी कुछ दिन अगर बारिश नहीं रहता, हम कहते हैं ब्रेक मॉनसून कंडीशन। उसके बाद दोबारा व्हेन इट इज एक्टिव मॉनसून शुरू होता है, मतलब एक फ्रेश मॉनसून का सर्ज आता है, सूखे धरती पर जब ज्यादा मॉइस्चर एक साथ आता है, क्लाउड का लाइफ टाइम ज्यादा होता है और उन क्लाउड्स में क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग का पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ता है। उस तरह के थंडरस्टॉर्म्स में आपको लाइटनिंग का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। जब लाइटनिंग आती है तो उससे हम हाउ डू वी गेट अफेक्टेड बाय लाइटनिंग? तो पहली तो है डायरेक्ट स्ट्राइक। जैसे बताया कि आसमान में चार्ट जो है वो रास्ता ढूंढ रहा होता है कि कैसे मिट्टी पे आएंगे। एक फ्लैट प्लेन ग्राउंड में इफ यू आर द person standing and you provide that path, lightning passes directly through the person and death happens. The next kind of lightning is when it is coming when you're standing under a tree. मुझे पता नहीं आप में से कितने जनों ने देखा है, पिछले साल गुड़गांव का एक फोटो आया था, पेड़ के नीचे 3-4 लोग खड़े हैं, पेड़ में लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ और साथ ही साथ 3-4 जने सब everybody falls down due to lightning strike. That was this second kind of lightning, where once the lightning has struck a tree, it comes up to here, then it looks what are the possible paths in which it can reach the ground. So it is always looking for the quickest path to the ground. Sometimes the person standing under the tree is the quickest path. So that becomes the second way in which lightning strikes. थर्ड जो पॉइंट है वो है ग्राउंड करंट। ये शायद हमारे इंडिया के लिए ये सबसे भयानक एंड सबसे कॉमन होता है। ग्राउंड करंट होता है अगर if lightning has struck a tree, you are not standing under the tree, या lightning कहीं दूर स्ट्राइक किया है, मगर ग्राउंड के थ्रू वो lightning प्रोपेगेट होता है। ये बताएंगे आपको एक पिक्चर से कि किस तरह से क्यों वो ग्राउंड में प्रोपेगेट होता है। या तो हो सकता है कि ग्राउंड में आयरन कंपोनेंट ज्यादा हो, सो इट एक्ट्स एज अ कंडक्टर, बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली इफ द ग्राउंड इज वेट, सो उससे भी आपका दैट ग्राउंड बिकम्स अ कंडक्टर, दैट बिकम्स अ सोर्स फॉर लाइटनिंग डेथ। जैसा हमारे फार्मर्स पैडी फील्ड में रहते हैं, तो पैडी फील्ड्स में आपको दिखाते हैं कि अगर एक जगह लाइटनिंग फ्लैश होता है, पूरा पैडी फील्ड में जितने फार्मर काम कर रहे हैं सबका डेथ या डैमेज होने का चांसेस ज्यादा रहता है। कंडक्शन, वो भी आपको ग्राउंड करंट कंडक्शन दोनों ही आपके लिए पैडी फील्ड वर्कर्स के लिए वैलिड है। और इस स्ट्रीमर, जैसे आपका लाइटनिंग कहीं स्ट्राइक किया मगर आप दूर खड़े हैं, फिर भी उसको जब बहुत ज्यादा करंट होता है तो ऑल्टरनेट पाथ भी वो ढूंढ लेता है जिससे कि पर्सन हिट होता है। सो जैसे बताया, वाई इज उत्तर प्रदेश सो वल्नरेबल? पहली तो बात है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर आप पिछले 20 साल में देखेंगे, पॉपुलेशन का परसेंटेज काफी बढ़ गया है, दैट इज वन रीजन। सेकेंड थिंग इज स्ट्रॉन्ग डायरनलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म्स। व्हाट दिस मीन्स इज द थंडरस्टॉर्म्स या लाइटनिंग इवेंट्स जो होता है यूपी में, दे मोस्टली हैपन इन द इवनिंग। किसान भाई हमारे जब बाहर जाता है फॉर द डेज वर्क, बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर मई, जून, जुलाई, this is the period for maximum lightning occurrence. I told you monsoon onset जून जुलाई। इसी समय फार्मर जाता है फील्ड में पैडी कल्टीवेशन के लिए। अगर मॉर्निंग में उसको देख के नहीं लगता है कि लाइटनिंग होने वाला है, थंडर आज बादल नहीं होगा मेरे गांव में, he goes to the field. बट अगर हो जाता है then immediately he becomes a victim. ये जो स्ट्रॉन्ग डायरनलिटी है, ये सबसे ज्यादा हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में होता है। ये मतलब
मॉर्निंग में एक सिग्नेचर नहीं है, इवनिंग में बहुत स्ट्रांगली थंडरस्टॉर्म आता है। उसके मुकाबले नॉर्थ ईस्ट में थंडरस्टॉर्म ज्यादा होता है। जैसे आपको पिक्चर दिखाया नॉर्थ ईस्ट में, ये देखिए पिक्चर, जैसे आपका इस तरफ आप देख रहे हैं कि मेघालय या असम में थंडरस्टॉर्म बहुत ज्यादा होता है, बट इसमें इतना ज्यादा डायरेक्शनैलिटी नहीं होता है। इसीलिए इसमें फार्मर को सुबह से ही पता चलता है आसमान देख के कि आज बारिश होने वाला, आज बादल कड़कने वाला है, तो ही टेक्स एडिक्वेट प्रिकॉशन। But in the case of Uttar Pradesh, the diurnality is much. तीसरा जो कारण होता है वार्निंग का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग जो होता है वो इनिशियल स्टेज ऑफ अ थंडरस्टॉर्म सेल डेवलपमेंट होता है। जब सेल बड़ा हो जाता है, उसका ऊपर तक जब बन जाता है, तो उस समय उसमें इंटर क्लाउड लाइटनिंग ज्यादा चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद अगर हम वार्निंग जब इशू करते हैं, कई बार वो वार्निंग आदमी तक पहुंचते पहुंचते डिजास्टर हो चुका होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन। हमारे डिजास्टर डिसेमिनेशन मैकेनिज्म हैज टू बी स्ट्रेंथेंड और प्री सीजन एक्सरसाइज हैज टू बी स्ट्रेंथेंड कि किस तरह का मौसम में आसमान में बादल देखने से ही प्रिकॉशन लेना चाहिए। और फोर्थ जो है लाइफ साइकिल ऑफ द पीपल, जैसे बताया जब भी बारिश शुरू होता है, हमारा जो किसान भाई है उस समय खेत में जाते हैं काम करने। स्टडीज हैव शोन दैट पीपल मोस्ट अफेक्टेड बाय लाइटनिंग आर फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड्स। ये है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैजुअलिटीज। ये इसलिए होता है क्योंकि इस समय पैडी ट्रांसप्लांटेशन का टाइम रहता है, इस समय खेत जूझने का काम रहता है, एंड दैट इज व्हाट इज सो मेक्स देम vulnerable for lightning strikes. How does a person get hurt by a lightning strike? First of all, it enters their body through a contact point and travels through the nervous or cardiovascular system. So bigger the body, the more space lightning has to travel inside the body, and the more damage it does to the human or animal. तो गाय भैंस ज्यादा प्रोबेबल होता है लाइटनिंग स्ट्राइक से कंपेयर टू भेड़ बकरी। देन द मोस्ट कॉमन वे, एज आई टोल्ड यू, ग्राउंड करंट, कंडक्शन करंट। हमारे किसान भाइयों का जो अभी एग्जांपल बताया, ये जो पैडी ट्रांसप्लांटेशन के टाइम में एक फील्ड में एक जगह में अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, द एंटायर watery area acts as a conduction plate. तो जैसा आप एक मेटल प्लेट के ऊपर खड़े हैं, जितने किसान काम कर रहे हैं सब इसका प्रकोप में आ जाते हैं। So this is a very big problem with humans. Then cardiac arrest, severe burns, permanent brain damage. So death is not the only problem. Death, though, you can say is better than many of the other problems that come up. Cardiac arrest तो होता ही है, मगर साथ severe burns, permanent brain damage, memory loss, personality change, बहुत सारा problems होता है जो कि lightning strike के दौरान होता है। तो what is the way to approach thunderstorm forecasting? First is pre-season preparedness, जो कि आज हो रहा है। इस तरह का प्री सीजन प्रिपेयर्डनेस ये बताने के लिए कि देखिए अगले जो 1-2 महीने हैं, what kind of weather are we expecting? What are the actions to be taken by the disaster managers? What are the actions to be taken by the general public? And what are the expectations from IND and other government organizations in improving the dissemination mechanism? Then we have something known as 1 to 5 day forecast. ये होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेशन लेवल पे 1 से 5 दिन पहले से हम बता देते हैं कि किस तरह का वेदर रहेगा आपका रीजन में। उससे आगे आता है 3 आवरली लोकेशन स्पेसिफिक नाउकास्ट, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में चलता है या स्टेशंस के लिए भी देते हैं। एंड लास्ट इज 30 to 40 मिनट वार्निंग ऑफ लाइटनिंग अकरेंस। इसके लिए जो अभी साही साहब बता रहे थे, दामिनी ऐप,
वो लाइटनिंग फ्लैश के बेसिस पे वो फोकस देता है, वो बहुत अच्छा है, और उसको अभी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा. सो दैट इज द लास्ट लेवल ऑफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर लाइटनिंग वार्निंग. प्री सीजन एक्सरसाइज में एक वाइट पेपर निकाला है NDMA ने, उसमें हम भी इन्वॉल्व हैं, IND इज ऑल्सो इन्वॉल्व. बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. ये I will share this presentation with you. Please go through this awareness if you've not gone through. I'm pretty sure most of you have gone through, but इसमें बहुत अच्छे से कार्टून्स के थ्रू समझाते हैं कि what actions are to be taken with in case lightning occurs. साथ ही साथ मीडिया को सचेत किया जाता है what exactly happens during every season. This is every season's preparedness. For this season, it will be lightning, it will be flash flood, it will be heavy rains. That is the bigger disaster we are facing for this particular season. And like I just told you, 5 days and then 3 hours, and then finally 30 to 40 minutes. This is our IMD Mausam IMD website for Lucknow. जो भी हम प्रोडक्ट्स बता रहे हैं अभी, ये सभी इसी साइट पे मौजूद है. If you've not seen, please go through it. It gives you realized weather as well as forecasts for the next 5 days and nowcasts also. This is the forecast for 5 days and this is nowcast. For example, today, unfortunately, we are not expecting much thunderstorm activity, but heat wave is expected. So it is indicating with color which are the districts with heat wave warning. साथ ही साथ, if you see, this is at district level. At stations, for different stations also, 7-day forecast is given regarding upcoming weather. But this is 1 to 5 day scale. Uske baad, when you come to 3 hourly time scale, please don't think that this is today's forecast. But today there was no thunderstorm warning. So I picked up a case of thunderstorm occurrence during this last 1 week, 30th of May. So if you see this kind of, this is on the IMD website as well as in the state level website. So this is giving very good signature, not only of whatever is being mentioned here. Suppose thunderstorm was given a warning we've given a warning for thunderstorm here. That will be updated in the sense that within the next 3 hours, in as quantitative scale as possible, what will be the kind of weather associated with the thunderstorm? बारिश होगा या नहीं होगा, लाइटनिंग होगा नहीं होगा, कितना प्रोबेबिलिटी से लाइटनिंग होगा, और उसके बाद है हमारा सरफेस विंड रहेगा नहीं रहेगा, हेल स्टॉर्म रहेगा नहीं रहेगा. ये सभी चीज का हम नाउकास्ट स्केल में वार्निंग देते हैं. तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं 19 कैटेगरीज में हम लोग वार्निंग देते हैं, और सभी वार्निंग ये IMD के मेन वेबसाइट पे आपको दिया जाता है. साथ ही साथ एक इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग भी, नाउकास्ट बुलेटिन भी इशू होता है जब आपका वेदर थोड़ा ज़्यादा खराब होने का चांस है. जैसे ये हमारा IMD लखनऊ ने 1 जून को दिया था. तो वेरी सीवियर थंडरस्टॉर्म कहाँ होगा, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, that is the warning that has been given. And whether there is hailstorm probability, whether there is only wind probability, and what is the impact expected. That is the most important thing. If you can see, maybe I should have highlighted this a little more. ये थोड़ा बड़ा करने से आपको दिखाई देता कि एक्शन सजेस्ट किया है, क्या इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है और एक्शन क्या सजेस्ट किया गया है, क्या क्या एक्शन इंसान को लेना चाहिए. ये इंफॉर्मेशन जितने आपका अफेक्टेड रीजन्स है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस है, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, उन सबको दिया जा रहा है. और ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन लखनऊ एंड रिलीफ कमिश्नर, सबको ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है एक्शन के लिए. ये जो स्लाइड है दिखा रहा है आपको कि
हमारा जो हर साल जो नाउकास्ट इशू होता है, ये हमारा टैक्स पेयर मनी से हमारा सैलरी आता है, इसीलिए हमें ये भी देना होता है हमारे इम्प्रूवमेंट हुआ या खराब हुआ तो किस कारण से हुआ. So if you see compared to 2020, green color indicates better forecasts. So probability of detection has become much better. False alarms have reduced for Uttar Pradesh, especially East Uttar Pradesh. If this is the case, then please try to remember that number of deaths is not reduced. So somewhere we are going wrong. So these warnings हम लोग, हमारा प्रॉब्लम क्या है वो अभी आपको बताते हैं. पहली तो बात है रीच, लास्ट माइल रीच प्रॉब्लम्स. एक फार्मर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. फार्मर के पास पहली तो बात है एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता है, और वो मोबाइल देखेगा या काम करेगा, ये भी बात है. सेकेंड थिंग इज even the dissemination up to the local level, it requires a huge system to be in place. Our job is to generate the forecasts, to generate better forecasts, but the dissemination mechanism is where we have a lot of shortfalls. कुछ तो हमारा मोबाइल ऐप है, जैसे आपका मेघदूत ऐप है, मौसम ऐप है, उमंग ऐप है, इन सब में आपको 3 अर्ली वार्निंग मिलेगा. साथ ही साथ जैसे दामिनी ऐप है, रेन अलार्म ऐप है, इस पे आपको 30 to 40 मिनट अहेड का वार्निंग मिलेगा. मगर ये वार्निंग का आपको देखना चाहिए इन टाइम टू बी एबल टू टेक एक्शन. ये जो पॉइंट है डिसेमिनेशन मैकेनिज्म, हमारा स्टेक होल्डर्स जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं, एनजीओज जैसा आपका प्रॉक्सी हैं, बाकी भी और बहुत हैं, और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का वेरियस मशीनरी है, वो सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. और पर्पस ऑफ दीज मीटिंग्स, पर्पस ऑफ टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू इज टू हेल्प, बिकॉज वी रिक्वायर हेल्प. वी रिक्वायर हेल्प एट फॉर द रिपोर्टिंग पार्ट, क्योंकि अगर हमें एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हुआ है उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो अगला दिन का पॉडकास्ट ठीक नहीं जाएगा. दूसरा है प्री सीजन एक्सरसाइज, इसमें आपका हेल्प चाहिए. जैसे आज का हेल्प NIDM इज प्रोवाइडिंग अस हेल्प टू टेक आवर वॉइस टू यू. एंड डिसेमिनेशन, हमारा रोज का जो नाउकास्ट है, फोरकास्ट है, ये स्टेक होल्डर तक जाना चाहिए. कैसे करें, उसमें भी हमें हेल्प चाहिए. ये क्राउड सोर्सिंग एक ऐप है, लिंक आपको दिया है, इसमें से आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपके एरिया में व्हाट काइंड ऑफ वेदर हैज हैपेंड. आई होप यू विल use this app to give us more information about your locality. That is important because thunderstorms are very mesoscale. Mesoscale मतलब थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं एक गांव में हेल दिया है, बाकी आसपास पूरा डिस्ट्रिक्ट में हेल नहीं आया. ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि हेल कहीं हुआ इस थंडरस्टॉर्म में या नहीं, ताकि कल का जब हम फोरकास्ट देंगे ये बात ध्यान में रखेंगे कि इसमें से एक दो जगह में हेल हो सकता है. दूसरा है वी आर नाउ स्टार्टेड टू गिव सीवियर वेदर नाउकास्ट्स फॉर पावर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन सेक्टर्स. ये भी जरूरी है. आपका पावर लाइन फेल कर ड्रॉप हो जाता है, आपका ट्रांसमिशन टावर्स गिर जाते हैं, इतना हवा चलता है. हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, आपका रोडवेज को, रेलवेज को हमारा अभी फोकस जाने लगा है, ताकि दे कैन टेक एक्शन इन केस ऑफ सीवियरिटी ऑफ थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, रिडक्शन इन विजिबिलिटी, ये सब कंडीशंस में वो एक्शन ले पाए. कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, ये टू गिव टारगेटेड फोरकास्ट. टारगेटेड नाउकास्ट पूरा देश को वार्न नहीं करना है, एक छोटा सा गांव, छोटा सा शहर को करना है. उसके लिए कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, उसमें अभी काम चल रहा है. मेरा आखिर 2-3 स्लाइड है, वो है लाइटनिंग के समय क्या एक्शन लेनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये WMO का 2 रूल है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली ये 2 रूल बोलता है. एक है व्हेन थंडर रोर्स गो इनडोर्स,
ये थोड़ा रिद में राइम में आता है। मतलब अगर आपको बादल कड़कने का आवाज आता है, बिजली कड़कने का आवाज आता है, तुरंत अंदर जाइए। अंदर किधर? पक्का बिल्डिंग के अंदर या हार्ड टॉप का गाड़ी, मतलब जैसे खुला गाड़ी या टेम्पो में नहीं, जिसके ऊपर छत भी मेटल का हो, वैसा गाड़ी के अंदर जाना चाहिए। दूसरा है 30-30 लाइटनिंग सेफ्टी रूल। अगर बिजली देखने के बाद बिजली कड़कने का आवाज सुनते तक आपका 30 तक गिनने के अंदर आ रहा है, इसके मतलब थंडरस्टॉर्म आपका बहुत पास है। तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए। इफ यू आर आउटसाइड, इमीडिएटली गेट ऑफ एलिवेटेड एरियाज। ऊंचे जगह में खड़े मत रहिए प्लीज। यू बिकम, जैसे बताया, ऊपर से लाइटनिंग रास्ता ढूंढ रहा है, चार्ज रास्ता ढूंढ रहा है नीचे आने का। आप कृपया वो रास्ता मत बनिए, तो आप इमीडिएटली हट जाइए वहां से। गेट आउट ऑफ पॉन्ड्स, वाटर बॉडीज, वेट पैडी लेक्स, वेट पैडी फील्ड्स, लेक्स एंड अदर बॉडीज ऑफ वाटर। तो आप जो किसान भाई हमारा खेती में काम कर रहे हैं, तुरंत निकल जाइए। आल होता है उस पर बैठिए, मगर जब बादल कड़क रहा है बिल्कुल भी पानी के अंदर मत रहिए। छोटा सा सॉल्यूशन है, बट उससे जिंदगी बच सकता है। डू नॉट लाइट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। जैसे बताया कि लाइटनिंग को जगह ज्यादा चाहिए, वो ऊपर से देख रहा है, जैसे आपको जितना फ्लैट होंगे, आपका सरफेस एरिया ज्यादा कवर कर रहे हैं, उससे आपका क्षति होने का, हानि पहुंचने का चांसेस ज्यादा बढ़ता है। अगर कोई शेल्टर ना हो तो गो टू द लाइटनिंग क्राउच। वो दिखाएंगे लाइटनिंग क्राउच क्या है। अगर इफ हेयर इज स्टैंडिंग ऑन योर बैक, इसका मतलब अभी इमीडिएटली बादल होने, बिजली कड़कने का संभावना है बहुत पास। मतलब अगर आपके जैसे नेक का पीछे का हिस्से में अगर आपका जैसे बाल, पूरा सर का बाल जैसे उठ रहा है, ये स्टैटिक चार्ज बिल्डअप हो रहा है, इसका मतलब बहुत पास आपका बहुत जोर से बिजली कड़केगा। कीप अवे फ्रॉम ऑल यूटिलिटी लाइन्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से हट के रहिए क्योंकि ये गिर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोल से हट के रहिए क्योंकि जैसे बताया आपका ग्राउंड करंट से या साइड करंट से आप डैमेज हो सकते हैं। दिस इज द, अगर आप बाहर खड़े हैं, आप अगर घर में नहीं आ सकते हैं, ये जो उकड़ू होके बैठने का है ना, जैसे बच्चे को पनिशमेंट के लिए बिठाते हैं, ये है सबसे अच्छा पोज जब आसपास बिजली कड़कने का चांसेस है। इमीडिएटली ये पोज लेके बहुत देर नहीं, जब तक थंडरस्टॉर्म जा रहा है कुछ देर के लिए ऐसे उकड़ू होकर बैठ जाइए। बहुत देर ये चलता नहीं है, मगर वो आधा घंटा अगर आप थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे, आपका जिंदगी बच सकता है। इफ यू आर इंडोर्स, अगर आप घर के अंदर हैं तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सेफ हैं। तो पहली तो बात है, होल हाउस शुड हैव सर्ज प्रोटेक्टर्स। कई बार होता है कि आपका टीवी लगा हुआ है मेंस के साथ, ऊपर से एंटेना, पहले एंटेना होता था, अभी जैसे आपका केबल कनेक्शन के थ्रू लाइटिंग ट्रेवल करके आपका टीवी वगैरह सब जला देता है। सो यू शुड हैव सर्ज प्रोटेक्टर्स इन द हाउस। ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन गेट डिस्ट्रॉयड। क्लोज विंडोज एंड डोर्स, क्लोज विंडो ब्लाइंड्स। आपके खिड़की दरवाजे बंद रखिए। बाहर अगर चीजें हैं जैसे उसके साथ हवा चलता है, उनको पत्थर से चप वो करके रखिए ताकि वो आके आपका एक जैसे प्रोजेक्टाइल के तरह, एक पत्थर के तरह आके आपका खिड़की दरवाजे में ना लगे। अनप्लग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, मेन से सारा कुछ स्विच निकाल दीजिए, बहुत जरूरी होता है। अवॉइड टेकिंग बाथ और शावर। देखिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे आपका इलेक्ट्रिक लाइन से आपका बिजली आता है, पानी का लाइन से भी बिजली आता है। ये मत सोचिए सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइन है। तो जैसे आपका रनिंग वाटर से काम मत करिए। अगर बाल्टी में पानी है उससे काम करिए, मगर रनिंग वाटर मत चलाइए जब जब उस टाइम के लिए, वो आधे घंटे के लिए जब आपके ऊपर बिजली कड़क रहा है। Do not lie on concrete floor or lean on concrete walls. Concrete floor भी आपका, concrete floor जैसे concrete का जो मटेरियल है
वो भी कंडक्टिंग मटेरियल बनता है लाइटनिंग के लिए। तो जैसे अच्छा होगा अगर आप घर में भी जब बैठे तो चेयर टेबल कुछ या बिस्तर कुछ इस तरह का चीज के ऊपर बैठे, डायरेक्ट मिट्टी पे ना बैठे जब बादल कड़क रहा है। धन्यवाद। प्लीज सी लाइटनिंग का कुछ कुछ अवेयरनेस वीडियोस है, ये जरूर देखिए। और मौसम imd.gov.in में भी जाइए, आपको लेटेस्ट वेदर इंफॉर्मेशन मिलेगा सारा देश का। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो मैं ले सकती हूँ। Yes, ma'am. There is one question, if you allow me to ask. यस प्लीज बोलिए। Yes. Ma'am, Mr. Prashant from DDMA Lakhimpur has asked, is crouch position help in lightning if person is in field? क्लाउड पोजिशन, Crouch position, ma'am. हाँ यस डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। जैसा आपको ये पिक्चर दिखाया, उनका नाम समझ में नहीं आया था, ये जो पोजीशन है ये पॉपुलराइज करिए। इस तरह का पोजीशन लेकर अगर प्लेन मिट्टी में बैठे हैं, जैसे पैडी फील्ड में आदमी काम कर रहा है, घर के अंदर नहीं आ सकता है, आसमान में बादल देखता है तो उसको उठ के आल जो होता है खेत का, वो भी अच्छा जगह है, वहां पर बैठ के कान ऐसे पकड़ के ऐसे बैठे रहे, इससे भी उसको काफी सहूलियत मिलता है। Okay. I hope Mr. Prashant has got his answer. So thank you so much, ma'am, for sparing your time for this webinar and addressing us with your advancement weather-related forecasting, where you beautifully explained about the what is the thunderstorm, types of lightning, and how it struck. How does person get hurt by lightning strike? And you also informed us about the uh, various IMD developed IMD apps, particularly for weather forecasting, developed by IMD and NDMA also and other departments, and how IMD Mosam app, particularly for work, particularly for Lucknow, you also explained, and about various impact-based early warning dissemination, and about nowcasting also you explained very well. Information about various mobile apps like Megdut, Mosam, Damini, you also explained do's and don't, particularly for thunderstorms and lightning. So thank you so much, ma'am, for sparing your time with us and sharing your knowledge with us. Thank you so much, ma'am. Thank you. It has been a pleasure for me too. Okay. We'll So now, stop sharing. so now moving ahead with our second technical session, we have joined with us Mr. Harihara Kumar, who is currently working as a young professional at National Institute of Disaster Management. And prior to that, he has also served as a sector manager at Gujarat State Disaster Management Authority. Now, I would request Harihara Kumar to kindly proceed with his presentation on National Plan, Policy and Guidelines on Thunderstorm and Lightning. Over to you, sir. Thank you, Mr. Ajit Bhattam. Am I audible? Yes, you are perfectly audible and visible. Okay, if you allow me to share my presentation. Yes, I have already assigned you the presenter, right? Kindly proceed with your presentation. Mr. Ajit, can you confirm whether my screen is perfectly visible or not? Yes. Yeah. Okay, a very good afternoon to all. So, like, like my earlier speaker from IMD very well explained about the different activities about lightning and thunderstorm and what are the do's and don'ts. It's a very valuable session, I will say. But so in today's my topic, I'm talking about the what are the guidelines and like for preparation of action plan on thunderstorm and lightning in India. So if you see, due to the geographical setting of India, India is prone to very a number of multiple hazards. Like if you say cyclone, tsunami, earthquakes, landslides, everything. But like over the recent years,
there is an increasing trend in death toll and damages reported due to lightning. And like if I say lightning, I can call it as a silent disaster, silent hazard, which is like if you see the statistics, lightning strikes kill more people in India than any other extreme weather event, causing more than 2,500 deaths every year. And if you talk about the losses, like maybe if you talk about the economic losses, like losses due to cultivated periods and buildings, and if you talk about the infrastructure losses, like disruption communication networks, power plants, and so on, like often distracted by this lightning, and sometimes lightning and thunderstorms may ignite potentially devastating wildfires also. And there is a study published in 2015 by California University saying that an increase of 1 degree Celsius would increase the frequency of lightning strikes by 12%. And there is, if you talk about almost statistics, like if you see in India, as many as there are 18.5 million lightning strikes were recorded in India between April 1st, 2020 and March 31, 2021. Like this is the report published by India's second annual report on lightning released by Lightning Resilient India campaign recently. So compared to the previous trend, this is a kind of an increase of 34% compared to the previous year. So if you talk like that's why we should pay a more more attention to this silent disaster, we can call it as. And if you see the major like as my previous speaker also mentioned, rural and forest areas are the most vulnerable given the presence of tall trees and water bodies are very highly prone to this lightning and thunderstorm. And if you see, a majority of the lightning victims are people who are working on the fields in rural areas. And if you like it's for example, if you talk about the one of the report published by IITM Pune, so there is a 86% of the total lightning related deaths in Maharashtra were reported from the people who are working on the fields. And this is also one of the major causes for electrical power breakdowns and forest fires. So these are the contributing factors which makes the government of India and NDMA to make a clear attempt and then give the focus on lightning attacks. So what we did, and then what are the how this thing happened, and then how the genesis for formulation of this guidelines has been happening. If you see during May 28, there are severe dust storms, thunderstorms, and lightning hit several parts of India, resulting in a large number of casualties and loss, if you can say, loss of lives and severe economic losses also. So these instances are as well as experiences from past led to the relation that we should have a proper guidelines for prevention and management of thunderstorm and lightning. So if you see, as per the Disaster Management Act, it was clearly mentioned that disaster management is like under Section 2E of the Disaster Management Act. It was clearly mentioned. So it's a kind of continuous integrated process of planning, organizing, coordinating, and implementing measures which are necessary for prevention of any danger or threat, mitigation and reduction of risk. And it should focus on capacity building, preparedness to deal with any disaster, and if you see a prompt response to any threatening disaster, evacuation, rescue and relief, and rehabilitation, reconstruction. So these are the several parameters we should focus on while making the while we are talking on that aspect of disaster management. So the linking the DM Act guidelines and then lightning scenario, we felt that. So we felt there is an urgent need to devise a national level strategy and a plan to reduce the adverse effects of these disasters. That's why NDMA has issued a detailed guidelines on action plan by state and local authorities. So the main object of this guidelines is like to provide help to vulnerable states in preparing their action plans and developing tools for early warning, preparedness, mitigation, as well as the coordinate strategies to minimize the losses due to this lightning and thunderstorm. And these guidelines are drawn from some international best practices, and it also provides us about do's and don'ts as well as the
steps to be taken by common people. Because if you like for a better plan, participation of stakeholders, including NGOs and civil society towards implementation of any policy makes a clear impact on how it can be taken into the community. So if you I'm going to like what is the structure of the guidelines and what are the different aspects we covered in the guidelines. I will talking on the coming slides. If you see the structure of the guidelines is as I mentioned, it's a sharing of the past learning experiences and academic and institutional research and action taken by states and historical data. So based on this, these guidelines are prepared. So it has total 7 chapters, and where chapter 1 deals with the background and introduction. So this chapter examines different weather hazards which pose a risk to life and public property and their impact and definition. So if you see as Dr. Soumya Senrai clearly mentioned, lightning is a weather-related disaster associated with thunderstorms. So lightning occurs due to electrically charged regions in a cloud, which is called intra-cloud lightning, or between cloud to cloud, or between a cloud and the ground. So this kind of background and introduction to hazard has been clearly mentioned in the chapter 1. We should make a clear note on those aspects in the chapter 1. And chapter 2 is focus on the preparation of action plan. So this chapter explains the rationale behind these guidelines and list its major objectives. So if you talk about the objectives, while making the plan, we should have a clear vision of what are the objectives we are going to clear. So if you say the clear objective of this developing guidelines is like to help the states and other stakeholders try to make a plan in a way to reduce the loss of lives, injuries, and economic losses. And it should focus on to develop the tools for assessment and undertake the preparedness and mitigation measures through a coordinated interagency approach. And to evaluate coordinated strategy for a DRR in the states involving all the stakeholders. All the stakeholders means it comprises of administration, all line departments, and different research like scientists, engineers, and PRS, non-governmental organization, community-based organizations, the communities in the planning process. So while making these guidelines, also we adopted certain strategies to make it in a very effective manner. Like if you see, establish a qualitative and effective early warning system, interagency coordination communication, and develop advanced preparedness mitigation response plan, uh, preparedness at local level for an effective incidents response plan, and capacity building and training, public awareness and community outreach, and collaboration with non-government organizations, civil societies. And if you assessing the impact, getting the feedback for reviewing and updating the plan. So these are the major key strategies where we focused while developing this guidelines for actual preparation of action plan for the lightning and thunderstorm. If you talk about the steps while making this for the development of plan, is like the step 1 is like we need a government engagement. If you want to go deep in that, like setting up an action plan requires participation from the state and district administration, line departments, municipal authorities, health agencies, and disaster management authorities and local partners. If I say, for example, each state can format a dedicated policy decision committee chaired by the higher, maybe in the state principal secretary, or maybe the state disaster management authority. So to develop an implementation strategy with the help of with the proper coordination with all line departments. And the second step is like appointing a nodal department and officers. At the same time, we formed a committee highly dedicated policy decision making committee, and at the same time we should have a proper nodal department and officers. Like it should also build the capacity of its key officials and agencies to fulfill their roles and responsibilities as mentioned in the state action plan. And in addition to that, the state should conduct tabletop exercises, simulations, and drills before the thunderstorms and lightning season, so that people can aware and then people get to know about their roles and responsibilities also. And in the third step of the development of action plan is like vulnerability assessment and early warning system.
It is important to identify vulnerable areas, assets, and population in order to establish a priority areas for early warning. So if you see in India, the state IMD is the nodal agency for the giving the alerts and forecasts. So the state should coordinate with IMD to develop a reliable and accurate localized early warning and dissemination plan. And in the step 4, we should focusing on the drafting and developing the action plan. So in this step, the state should have a nodal officer or an agency so that it can coordinate with all the concerned line departments and prepare an action plan with a clear, dedicated and defined roles and responsibilities. And after that, once you decided the nodal agency and nodal officer to who will coordinate with all that, and then we should have focus on the preparation of a team and the coordination. Like if you state officials and agencies should be well prepared, well trained, and what you can say, like they should have the information for the thunderstorms and lightning. And the one more factor is that the state should develop a clearly defined interagency emergency response plan with a clearly cut roles and responsibilities and how the information should be passed from the high level to low level. It was like the coordination mechanism should be established, and the information should be passed to the all teams, like including all the line departments and then officials, and implementation and monitoring. So while the government departments, like all the line departments, other partners are responsible for implementing the plan. So at the same time, the public, because without public, there is no success of plan. And then there is, that's why like the public should be made aware of how to respond to extreme weather events and like how to respond whether during the incidents and during the season. So for that, we should have to develop a kind of IEC, information, education, and communication or material, IEC material, so that the information should be clearly disseminated to the local ground level, reaching the last mile. And like this IEC material should comprise of what are the do's and what are the don'ts. And the one more factor is that the major factor which influences the IEC material is whatever the IEC materials we are using, that should be in the local language and disseminated through various media channels. Because the people, if you talk about in order to reach the last mile in the community, the information should be passed. Whatever the information we are passing to the local level should be in a like using their vernacular language. That means local language. And at the same time, this is like uh, before pre-season. I mean, pre-season consultation should be held at the state level as well as the district level, like in every year, so that people are aware of their roles and responsibilities, and then evaluating and updating the plan. So this is the one of the major steps. So the approach towards extreme weather incident must be flexible, and I try to determine whether the strategies to deal with them are effective. And if you like, if there are, it's like uh, while we made the plan, we should evaluation, we should implement it, we should make an evaluation. And if you have to do a gap analysis, like if there are any gaps, like where we are lacking, so based on the gap analysis, we should make the updation of the plan according to the gaps. And again, we have to implement it in the next season so that the gaps can be covered and then the loss can be minimized, the risk can be minimized. So this is the, like if there are any gaps found like while evaluating the plan, then those should be updated. And strategies for adapting to climate change, long-term plan. So if you see, the state should undertake mitigation strategies to reduce the impact of climate change. Because if you see the global phenomena, climate change is like climate crisis is one of the major factor which influence the total weather pattern. So that's why we should have developing a disaster resilient infrastructure and implementing the there is a guidelines also like manual on hazard resistance construction in India for non-engineering buildings. So these following the proper codes like NBC codes and everything should be adopt strictly followed while making these resilient constructions. And if you talk about the chapter 3 of the
total action plan should talk about the strategy, like early warning and alerts, dissemination communication strategy. So if you remember the last speaker, what he by Dr. Somesh and Roy, she mentioned IMD is giving the warning, but the problem lies with how this information is going to the last mile. So that's why the state or the district should make a clear-cut plan how this information received from the top level should reach the local level in a very efficient manner. So for this chapter clearly explains the entire system of issuing weather forecast and early warning, and like short to medium range forecast indicates the potential areas to risk with. So as I mentioned, IMD is the nodal agency, but besides, the states should establish their own independent early warning and monitoring system to supplement warnings from the IMD. And right now we are like even IMD is very doing very good, and they are giving you no cash forecast. It provides a very specific information about the place and time of occurrence. So while for example, excuse me, the major factors while the states should consider while establishing their own independent early warning system is like they should focus on risk knowledge and monitoring the warning services and dissemination communication plan, and what are the response mechanism and capacity building. So these are the four major factors which influence the level of success of any early warning system. And if you talk about the chapter 4, it deals with the prevention, mitigation, preparedness measures. So in this chapter, the concept of structural and non-structural prevention, mitigation, preparedness measures should be included, and it should include the actions to be taken before, during, and after an extreme weather events. So if you talk about the preventive measures, like disaster prevention covers the measures aimed at impeding the occurrence of disaster incident or preventing such occurrence of affecting the communities. Like if you talk about the preventive measures, like doing this hazard and vulnerability assessment, so that we can give a priority to those vulnerable areas, and sensitization of disaster managers, planners, and decision makers in terms of their roles and responsibility in terms of any unexpected hazard popped up out of nowhere, and awareness generation among masses, because community plays a big role for a DRR, like for a resilient society. That's why we should have to focus on the generating awareness among the masses. And if you talk about the mitigation and preparedness measures, why, like as I mentioned, we should focus on the hazard resistant construction, and we should focus on the emergency communication system. Like if something happened, what is the protocol, and then what are the emergency numbers should this kind of awareness should be given to the masses. And technical, social, and organizational administrative preparedness. And the one of the major parameters, like making this the strategy of DRR as a part of school curriculum, so that the uh, if you sensitize the knowledge, like if you posture the knowledge of DRR at a child at a school level, they should follow, they should like implement, and then they should practice the strategies in the real field also, which makes a clear cut difference between like a clear cut difference in making the risk very to a lower scale. And protection against lightning, like lightning shields and other technologies can be added in the mitigation and preparedness measures. And so in the chapter 5, it deals with the capacity building. So, capacity building and training. This chapter emphasizes on the creation of greater awareness in the masses, and this would, if you say, as I mentioned, like fostering the culture of prevention, mitigation, and preparedness, as well as effective and rapid response, and rehabilitation and recovery, can minimize the risk to a lower scale. For that, we have to do the capacity building by training the officials, like administrative officials, and then disaster managers, and what are the do's and don'ts, and then what are the emergency procedures, like what are the clear cut roles and responsibilities, like maybe if in terms of any emergency, how they have to respond, and what are their roles and responsibilities. Their training and simulations, or maybe mock drills, can be conducted so that they can be prepared
for any unexpected event. And the one more factor is like research and development. So although we are developing in certain aspects, there should be a focus on there should be a focus given to the research and development, where we can to those technologies where the loss can be minimized. And in the chapter 6, it was clearly mentioned about the roles and responsibilities and implementation plan. So, as per NDMA, the NDMA clearly given a roles and responsibility matrix. That means for which action at state level, who is the responsible, at national level, who is the responsible, and at state level, who is the responsible, and what are the roles and responsibilities they have to do. And it also provides a brief insight into how SEOC and its system and procedure should be designed for rapid dissemination of information to all stakeholders to enable effective decision-making support system and a quick response during emergency. So it also clearly mentioned, it was also focusing on the what are the strategies while understanding the risk, and then what are the systematic roles and responsibilities for that interagency coordination. And it was also clearly mentioned about the what is the roles and responsibilities while we are focusing on the investing in DRR, like either it can be structural measures by adopting the structural measures or by adopting the non-structural measures also. And finally, it was focused on the capacity development also, where the capacity of masses can be increased so that the nation becomes resilient by minimizing the loss, and then they can increase their capacity at the communities. And the last chapter 7 is totally of record of data and documentation. So recording data and documentation of any event is very important in terms of, particularly in relation with the disaster, because in disaster we used to learn from the past, and make the utilization of the information provided from the past, so that we can make a build back better society. So in order to address this aspect, chapter 7 is focusing on the need and importance of exhaustive data collection and validation at the district level and compilation of at the state and central level. So then it's like at district level, in the charter also they gave a clear-cut data sheet, what kind of information should be collected at the ground level, and then what is the reporting mechanism, like from district local level to the district level, and district level to state level to national level, so that we can this can be useful for creating a database which enable a policy decision program. So this is the total crux of uh, the guidelines given by NDMA for the preparation of action plan for lightning and thunderstorm and lightning. So based on this theme guidelines, there are certain states, almost most probable, like most vulnerable states which are prone to thunderstorm and lightning, made their plans, and then they are making successive by proper implementation and then reviewing it at local level. So this is about the total guidelines, which is about the preparation of action plan on thunderstorm and lightning. Thank you, Mr. Harihara Kumar, for this wonderful presentation, where you inform about the various steps to develop action plan, early warning and alerts which are needed to disseminate and communicate, and along with the prevention, mitigation, and preparedness measures. Thank you so much. As of now, I cannot see any question for you. If there are any questions, I will get back to you. So now For sure. moving ahead to the third now moving ahead to the third technical section of this webinar, we have with us Colonel Sanjay Srivastava, sir. So before calling him, I would like to introduce him with the participants. So Colonel Sanjay Srivastava is an active disaster management professional who brings in vast experience of 36 years of Indian Army from Indian Army and civil governance and technology sector. He has been a part of climate hazard and disaster management since its inception, being actively involved in response to super cyclone 1999, Gujarat quake 2001, to pandemic COVID-19.
He is a well-versed with Gurugram and in particular in India and its geomet disaster vulnerability. His core specification is remote sensing satellites and radar. He is MTech Electronics and MTech Armament, MBA, and many international and national qualifications. So Colonel Srivastava is known expert on geomet disaster management in India and abroad. He is chairman of Climate Resilient Observing Promotion Council, that is CROPC, at New Delhi. Prior to this, he has been advisor to Jharkhand for 9 years, where his monument work in climate action for and DRR brought him to limelight of national international agencies. He is part of expert group at national level and also member to COVID task force team. Now, may I request Colonel Sanjay Srivastava to kindly proceed with your presentation. And sir, you can take your time to complete your presentation. Over to you. Thank you very much, Ajit. May I request you to give me a presentation, right? Yes, sir. Yes, sir. I hope you can see my screen now. Yes, sir. I can see your screen. And can you please Yeah, I will open just your do it on the slideshow mode. Can you see it now? Yes, sir. I can see Ajit, it. can you see? Yes, sir. Yes, sir. But your presentation, is this your presentation, sir? Yeah, this is my presentation. Okay. Can you Okay. see? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, Ajit, for the opportunity. मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही सर का और ब्रिगेडियर पीके सिंह सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज के कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया और उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन के बिहाफ पे रिस्क मिटिगेशन और सेफ्टी मेजर्स उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में आकाशीय बिजली और आंधी तूफान के जोखिम, शमन और सुरक्षा के उपाय के बारे में बोलने का मौका दिया। मैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह प्लेटफॉर्म दिया है और मैं स्पेशली प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और यंग प्रोफेशनल अजीत बाथम जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। किसी भी कार्यक्रम में सबसे अंत में बोलना मुश्किल होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ता है। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी काफ़ी कमिटेड हैं और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं, दोनों हमेशा वज्रपात सुरक्षा के लिए हमेशा क्रियाशील रहते हैं और इस दिशा में उत्तर प्रदेश में काफ़ी काम हो रहा है और ये पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है कि आज उत्तर प्रदेश के माध्यम से आपको लाइटनिंग के क्षेत्र में क्या क्या कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी, एक कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मैंने इस प्रेजेंटेशन में पैक की है और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी चलूं क्योंकि जो पोर्शन डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने कवर किया है उस पोर्शन को मैं निकाल दूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ते हुए आपको लेके आज के मौसम के बारे में बताना चाहता हूं कि जहां तक लाइटनिंग फोरकास्ट की बात है, आज लखनऊ का तापमान 42 डिग्री है। लखनऊ से नियरेस्ट 498 किलोमीटर पे फिलहाल लाइटनिंग की घटनाएं हो रही हैं। ये सैटेलाइट इमेजरी है पूरे थंडरस्टॉर्म अलर्ट की जो अभी सिचुएशन है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल की तराई के इलाके में लाइटनिंग की संभावना बनी हुई है। ये पूरा थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का पूरे देश के लिए ये मैप है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो पूरे हफ्ते के लिए आईएमडी का 5 दिनों का फोरकास्ट आता है, तो 6 तारीख, 7 तारीख और 8 ये अलर्ट मोड पे है कि हमें वॉच रखना चाहिए, लाइटनिंग होने के चांसेस हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र
डॉक्टर सोमा सेन रॉय कर रही थी, वो हमारा 2022 का मानसून। और ये मानसून के जो तारीख दी हुई है 15 जून, 20 जून, 25 जून, 30 जून, ये पीरियड है जब मानसून उत्तर प्रदेश के पूर्व से होके पश्चिम तक बढ़ेगा। ये समय है जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मानसून के आने से पूर्व या प्री मानसून थंडरस्टॉर्म के चांसेस हैं। मैं अभी अभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से सभी लोग आए हैं, और इसकी जो विशेष प्रतिनिधि हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, श्रीमती मामी मिजुतोरी, उनके एक वाक्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। खतरा आपदाओं में बदल जाता है क्योंकि हमारे निर्णय हमेशा भेद्यता को कम करने के लिए नहीं लेते हैं। हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो हम एक्सपोज्ड कम्युनिटी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, और इसीलिए डिजास्टर किसी न किसी रूप में मानव निर्मित, मैनमेड हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूंगा, लाइटनिंग इज एन अवॉइडेबल डिजास्टर, और जो हमारी नेशनल पॉलिसी है, जैसा कि प्रोफेसर सूर्य प्रकाश ने बताया, जीरो कैजुअलिटी अचीव की जा सकती है, और मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये कैसे की जा सकती है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जहां तक बताना चाहूंगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है टेक्नोलॉजी से आधारित सोल्यूशन डिजास्टर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए देना। जहां तक डिविजन्स की बात है, हमारे 4 डिवीजन है: मॉडलिंग, फोरकास्टिंग, वेदर सर्विसेज, क्लाइमेट चेंज एंड कार्बन क्रेडिट्स, लाइटनिंग काउंसिल एंड वाटर। इन 4 डिवीजन के साथ हम काम कर रहे हैं, और इसी के साथ हम लोगों ने पूरे देश में जब लाइटनिंग अर्ली वार्निंग और सेफ ग्रिड सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहा, उसके उद्देश्य से हम लोगों ने लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था 26 मार्च 2019 को, और हमारा उद्देश्य था देश में 80% लाइटनिंग डेथ्स को कम करना। और इसके लिए 2 pronged अप्रोच थे कि जो मौत हो रही है उनको तुरंत रोकना, ये आपको मैंने पीले में दिखाया है, इसकी वेरियस स्ट्रैटेजीज हैं, और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, एनवायरमेंट, इन सबों को लेकर एक लॉन्ग टर्म प्लान करना जिससे कि वातावरण सुरक्षित हो। और जहां तक सक्सेस की बात हम कर रहे हैं, तो उड़ीसा हमारा स्टेट है जिसने लाइटनिंग में, और आंध्र प्रदेश ने, इन्होंने 60% से ज्यादा लाइटनिंग के डेथ्स में कमी लाई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इन स्टेट्स की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जैसा कि डॉक्टर सोमा सेनरॉय ने बताया, 3 सूत्री कार्यक्रम हमारे पास जरूर होना चाहिए। लाइटनिंग की पूर्व चेतावनी, और इसके लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। लाइटनिंग के दौरान क्या करें क्या न करें, पक्के घर में रहें, पेड़ों से दूर रहें, अपने आप को छोटा प्रस्तुत करें, कार के अंदर रहें, और अगर कोई आश्रय ना हो तो आप कुकड़ू मुद्रा में बैठ जाएं। बस और कार सुरक्षित है। और जहां आपका घर, मकान या खेल का मैदान हो, ये सारे वज्रपात सुरक्षित हों, और इसके लिए लाइटनिंग कंडक्टर, तड़ी चालक या अरेस्टर लगाएं। ये हमारा टैगलाइन है, पक्का मकान सबसे सुरक्षित स्थान। और जब बिजली करे गर्जना, पेड़ के नीचे कभी ना कह रहना। जब भी बारिश हो रही हो, बिजली कड़क रही हो, कभी भी पेड़ के नीचे नहीं रहे। पक्का मकान सबसे सुरक्षित स्थान। इस पूरे प्रेजेंटेशन में मैं आपको लाइटनिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। ये जानना बहुत जरूरी है, किसी भी आपदा से बचने के लिए उस आपदा को जानना जरूरी है। और जहां तक लाभ लाइटनिंग की बात करूं, तो लाइटनिंग एक ऐसी आपदा है, चाहे वो बाढ़ हो या सूखा हो, हर आपदा से ये अलग है और ये पल में हो जाती है। तो लाइटनिंग को जानना बहुत जरूरी है, और उससे होने वाले खतरे और उससे उसकी वल्नरेबिलिटी। अर्ली वार्निंग और डिसेमिनेशन, इसके मिटिगेशन एस्पेक्ट्स में आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में लाइटनिंग का जो हमारा रिसर्च है, उस पर जो सारे तथ्य हैं वो सामने रखूंगा। वो सारे राज्यों को, दूसरे राज्यों को भी जानना चाहिए। लाइटनिंग प्रोटेक्शन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसा कि मिस्टर हरी बता रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चूंकि एक लाइटनिंग साइंटिफिक और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और एक डायनामिक प्रक्रिया है, तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट आधारित लाइटनिंग रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम चलाएं। आगे की बात मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए आकाशीय बिजली को हम समझते हैं।
आकाशीय बिजली कोई नई चीज नहीं है, ये पूरे दुनिया के लाइटनिंग प्रोन देशों का मैप है जो ये गहरे लाल रंग में दिख रहे हैं। और ग्लोबली 2 मिलियन लाइटनिंग, 20 लाख लाइटनिंग हमेशा होती रहती है। और इसके होने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है, हीट, मॉइस्चर और कन्वेक्शन। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप गर्म तवे पे अगर आप पानी डालते हैं तो भाप उठता है। वैसे ही धरती पे भी, गर्म धरती पे जब बादल आते हैं तो वो कन्वेक्शन होता है और वो फिर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का रूप लेते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। डॉक्टर सोमा सेन ने आपको दिखाया था। ग्लोबल वार्मिंग, हीट, डिफॉरेस्टेशन, डिप्लीशन ऑफ वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज है इनकी कमी जो हो रही है उनके कारण लाइटनिंग बढ़ रही है। विश्व में करीब 24,000 लोग प्रति साल मर जाते हैं। हमारा उद्देश्य है डेथ मस्ट स्टॉप और साइंटिफिक सॉल्यूशन के साथ कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच पे काम करना। जहां तक लाइटनिंग की बात है, पूरे देश में करीब 2,500 लोग प्रतिवर्ष मरते हैं, लेकिन 96% लॉस ग्रामीण एरिया में है। तो हमारा जो अभियान है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां तक शहरी क्षेत्रों में लाइटनिंग होती है तो ये कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि शहर में चूंकि मकानों का घनत्व तो ज़्यादा होता है तो लाइटनिंग एनर्जी वहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन अगर आप गाँव में देखें तो चूंकि इलाके खुले होते हैं, लाइटनिंग गिरने के बाद नेपथ्य में, हॉराइजन में आप देखेंगे चारों ओर लाइटनिंग फैल रही है। जहां तक लाइटनिंग होती है इसके लिए हमारा कंप्लीट इकोसिस्टम जिम्मेवार है। ये हमारा सूरज है, ये धरती है, ये ओशियन है। ये सूरज की गर्मी से हमेशा एवापोरेशन होता है। आगे बढ़ने से ये जानना जरूरी है कि क्लाउड, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वो है क्लाउड, बादल, उस पे लाइटनिंग के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो हमारे 6,000 फीट पे आपको सतही बादल नजर आते होंगे, फाए नजर आते होंगे, उनको हम सफेद स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं। और ये जब ऊपर हो जाते हैं 20,000 फीट तक तो उसको अल्ट्रोस्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं, ये क्लाउड। और ये जो इस तरीके की आप देख रहे हैं फाए फाए की शक्ल में है, इनको साइरस क्लाउड कहते हैं। ये सारे क्लाउड सफेद रंग के होते हैं। जब ये ऐसे गोल गोल घूमते हैं तो इनको हम क्यूमुलस कहते हैं। लेकिन ये जब सारे बादल क्यूमुलो घुंघराले जो आप देख रहे हैं ये काले हो जाते हैं तो इनको हम क्यूमुलो निम्बस क्लाउड कहते हैं। और यही वो बादल हैं जिनके अंदर लाइटनिंग होती है। जब भी काले घने घुंघराले बादल और हल्की तेज हवा आए तो आप समझ लेना आपकी ओर लाइटनिंग आ रही है। बाकी सफेद स्ट्रेटस, क्यूमुलस, साइरस, ये बादल लाइटनिंग नहीं लेकर आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं आकाशीय बिजली वाले काले घुंघराले बादल, ये वो बादल है जो लाइटनिंग लेकर आते हैं। तो नेचर जब भी कोई भी आपदा लाती है उससे पहले इंडिकेशन देती है। ये काले घने घुंघराले बादल और जो हल्की ब्रीज, हल्की हवा चल रही है, वो आपको नेचुरल अर्ली वार्निंग देते हैं कि लाइटनिंग होने वाली है। जहां तक थंडरस्टॉर्म की बात करें, डॉक्टर सोमा सेन ने बताया है कि जब गर्म धरती पे मॉइस्चर आती है तो मौसम में अस्थिरता आती है और उससे लिफ्ट पैदा होता है। लिफ्ट पैदा होने के कारण थंडर होते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया, हीट, मॉइस्चर, इंस्टेबिलिटी, लिफ्ट, कन्वेक्शन और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि लाइटनिंग की शुरुआत हीट से होती है, मॉइस्चर आता है, इंस्टेबिलिटी अस्थिरता होती है, भापन के ऊपर लिफ्ट मिलता है, कन्वेक्शन होता है, थंडरस्टॉर्म और उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सारे स्टेजेस हैं। अगर आप इनको पहचानेंगे तो आप लाइटनिंग की अर्ली वार्निंग खुद ब खुद निकाल लेंगे। जो स्थान गर्म होगा और अगर वहां पे बादल आने वाले होंगे तो वहां के पे कन्वेक्शन होना है। तो इस तरीके से आप खुद एक लोकल लेवल पे साइंटिस्ट का रूप प्ले कर सकते हैं। जहां तक हीट की बात है तो उससे रेडिएशन होती है, पास वाली हवा में कंडक्शन होता है, और अगर ज़्यादा होता है तो ये हवा ऊपर उड़ती है जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। जहाँ तक लाइटनिंग कैसे बनती है मैं आपको दिखाने की कोशिश किया। ये सूर्य की रोशनी आई, धरती गर्म हो रही, बादल आ रहे हैं, ये बादल ऊपर जा रहे हैं और ये घर्षण के बाद ये थंडरस्टॉर्म बाद में आप देखेंगे ऊपर बढ़ रहे हैं और उसके बाद ये लाइटनिंग का रूप लेकर नीचे स्ट्राइक करते हैं। ये सारी प्रक्रिया आपको
डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने बताया था। तो ये लाइटनिंग बनने की प्रक्रिया है जो मैंने आपको दिखाया है। ये आपको चार्ज दिखा चुके हैं डॉक्टर सोमा सेन रॉय। ये 3 स्टेजेस होते हैं, क्यूमुलस, मैच्योर और डिसिपेटिंग। ये स्टेज है जब लाइटनिंग बन जाती है, और ये जब डिसिपेटिंग, जब वो गिरती है। जहां तक लाइटनिंग की बात है, आपको क्लाउड टू ग्राउंड, जो आसमान में बादल होते हैं उनको आईसी क्लाउड, इंटर क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं, और जो जमीन पे आते हैं उनको क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग कहते हैं। हमेशा लाइटनिंग जो सबसे ऊंचा ऑब्जेक्ट है उसे स्ट्राइक करती है, चाहे वो पेड़ हो, घर हो, इलेक्ट्रिक पोल हो या इमारत। अभी आपको समझना चाहिए लाइटनिंग में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आते हैं, उससे क्या हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। इंटर क्लाउड फ्लैशेस, आसमान में जो चमक दिखाई देती है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा। क्लाउड टू ग्राउंड फ्लैशेस, ये हमारे लिए सबसे खतरनाक है, जो काफी बड़ा करंट हमारे ऊपर लेकर आते हैं और जिससे इंसान को करंट लगता है। लो वीएचएफ साउंड होता है, एनर्जी 250 किलो जूल तक एनर्जी होती है। जहां तक करंट की बात करें तो 30 से 180 किलो एम्पियर। तापमान लगभग 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सूरज के तापमान से 5 गुना ज्यादा तापमान हो सकता है। और जो वोल्टेज है वो हजारों और लाखों में होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम अपने घर में 30 एम्पियर और 220 वोल्ट की बिजली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आसमान से बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली, वो हजारों लाखों वोल्ट और कम से कम 130,000 से लेके तो 180 किलो एम्पियर वोल्ट लेकर आ रही है। लाइटनिंग के जो सिनेरियो अभी तक मैं संक्षेप करना चाहूंगा। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होनी चाहिए, लाइट विंड होनी चाहिए, थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म, स्क्वॉल के टाइम पे लाइटनिंग होती है। जब भारी वर्षा होती है तब लाइटनिंग होती है। जब क्लाउड बर्स्ट, बादल फटते हैं, तब लाइटनिंग होती है। साइक्लोन जब आता है उस वक्त लाइटनिंग होती है। और ड्राई लाइटनिंग, एक्चुअली ये नेचुरल प्रोसीजर है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन अर्थ एंड स्काई, जो हमेशा होता है। और हिंदुस्तान के समय के हिसाब से ग्रीनविच मीन टाइम 1930, हमारे शाम के 7:30 बजे के हिसाब, हमेशा ये लाइटनिंग न्यूट्रलाइजेशन होता है। और ये ज़्यादा इक्वेटर के, जो हमारी भूमध्य रेखा है, उस इलाके में ज़्यादा देखा जाता है। जहाँ तक लाइटनिंग की बात है, ये हमारे ऊपर कर्ज नहीं है, ये प्रकृति का एक हमारे ऊपर वरदान है। जब हम खेती करने जाते हैं उससे पहले वज्रपात होती है, बारिश से पहले, वो हमारी मिट्टी में आसमानी नाइट्रोजन को लेकर उसे उपजाऊ बनाती है। इस प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ओजोन फॉर्मेशन की करती है लाइटनिंग। इसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज सूरज से आते हैं, उनका प्रताप हमारे ऊपर कम होता है और हमारा बचाव होता है। लाइटनिंग के कारण मशरूम और बटन मशरूम, जिसे झारखंड या ट्राइबल एरिया में खुखड़ी कहते हैं या रुगड़ा कहते हैं, वो होता है, जिसकी जो काफी अच्छा कैल्शियम का सोर्स है और मेडिकेशन की वैल्यू है। लाइटनिंग इज अ हाई सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत बड़ा ऊर्जा का सोर्स है। ये हमारी अभी तक हम इस एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये लाइटनिंग एनर्जी स्टोर हो गई तो दुनिया के सारे एनर्जी के सोर्स से ये कहीं ज्यादा है। जहां तक लाइटनिंग की बात है, आपको डॉक्टर सोमा सेनराव ने बताया था कि लाइटनिंग आपको वर्टिकली स्ट्राइक करती है, और जब इस पेड़ पे जैसे स्ट्राइक कर रहे हैं तो अगर इसको हम टच करेंगे तो इसे टच वोल्टेज कहते हैं। और जब ये चारों ओर फैलती है तो ये गोलाकार इलाके तरीके से फैलती है, आप ये सर्कल देख रहे हैं। और ये जैसे जैसे दूर जाती है इसका वोल्टेज कम होता जाता है। अगर आप इन दो पैरों के बीच की वोल्टेज को देखेंगे तो यहाँ 30 किलो वोल्ट डिफरेंस है। तो पैरों के बीच के वोल्टेज को हम स्टेप वोल्टेज कहते हैं। ये इंसान में कम, और आप देख रहे हैं पशु ये 4 पैर के, तो इनमें बहुत ज्यादा होता है। और इसके कारण जब पशुओं को लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो आप देखेंगे वो जमीन से उछल जाते हैं। सामान्य तौर पर समझने के लिए, लाइटनिंग की वर्टिकल स्ट्राइक होती है और फिर वो चारों ओर फैलते हैं। जो आप देख रहे हैं किसानों की मौत जो ग्रामीण इलाकों में होती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हमारे तराई के इलाकों में, वो ये लेटरल स्ट्राइक से ज्यादा होती है। असम में हाथियों की मौत लेटरल स्ट्राइक से हुई थी। अभी समझने की बात है कि ये जब लाइटनिंग गिरती है तो ये टच वोल्टेज है, और ये जब चारों ओर फैलती है और इंसान का पैर अगर अलग रहता है तो दोनों के बीच में वोल्टेज पैदा होती है, जिसे स्टेप वोल्टेज कहते हैं। इससे आपके शरीर में एक और लाइटनिंग घुसती है और दूसरी ओर निकलती है, जिससे आपको करंट लगता है। लाइटनिंग के कारण क्या क्या हो सकता है? आपके हार्ट का फेलियर हो सकता है। आपके हार्ट का जो वाल्व है
मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके हार्ट के वॉल में एक इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा हुआ है और वोल्टेज डिफरेंस के कारण आपका पल्स रेट, आपके जो छाती के अंदर खून का प्रवाह होता है, वो पल्स वाल्व उस इलेक्ट्रिक वोल्टेज के कारण रिलीज करता है। लाइटनिंग स्ट्राइक होने से आपका वो इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस हो सकता है और आपका दिल का धड़कना रुक सकता है। आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मसल कंट्रैक्ट हो सकते हैं, जल सकते हैं, आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए क्या प्रभाव हो रहा है। आपके चेस्ट पे प्रभाव होगा, आपके कान के पर्दे फट सकते हैं और आपको जलन हो सकती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हमेशा हर घर पे या जहां भी आप काम कर रहे हो लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस जरूर लगी होनी चाहिए। जहां तक प्रभाव की बात मैं करूं, इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का नुकसान होता है। इससे हेरिटेज बिल्डिंग जैसे मंदिर, मस्जिद, इनका नुकसान होता है। आपने देखा पिछले साल द्वारका मंदिर के ऊपर गुजरात में लाइटनिंग गिरी थी, उदयपुर फोर्ट के ऊपर लाइटनिंग गिरी थी। कई ऐसे सारे केस हैं जिसके ऊपर आमेर फोर्ट में 11 जुलाई 2021 को लाइटनिंग में 18 लोगों की मौत हुई थी, क्योंकि लोग वहां पे सेल्फी ले रहे थे। ये एक एड है जो मैं आपको चाहूंगा कि आप देखें। लगता है मौसम बिगड़ रहा है। बाप रे, लगता है ठनका गिरने वाला है। बरगद या पीपल के चौड़े पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। चलो हाँ चलो 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 चलो। सावधान। अचानक घने बादल, तेज हवा, बिजली की चमक, वर्षा और गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर ऊंचे या एकल पेड़ों के नीचे न जाएं। एक साथ कई आदमी इकट्ठा न हो। गीले खेतों में हल चलाते रोपनी या अन्य कार्य कर रहे व्यक्ति तुरंत सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर आ जाएं। तैराकी कर रहे लोग, मछुआरे आदि अविलंब पानी से बाहर निकल जाएं। यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हो और किसी सुरक्षित स्थान की शरण न ले पाए हो, तो जहाँ हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। जमीन पर न लेटें। धातु से बने कृषि यंत्र, डंडा आदि से अपने को दूर कर लें। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग न करें। यदि आप घर पे हो तो बिजली से चलने वाले यंत्र को बंद कर दें। अब तक का पूरा संक्षेप ये है कि किसी भी आपदा से बचने के लिए सबसे पहले उस आपदा को जानें, उसके डिटेक्शन के पैरामीटर्स को जानें कि कौन कौन सी चीज़ों से वो आपदा बन रही है, उसके जो फोरकास्ट है उसके प्रभाव को आप जानें, इसका डिसेमिनेशन उन लोगों तक कर पाएं जो वाकई में इससे प्रभावित हैं। जहाँ तक लाइटनिंग की बात है तो सेल्फ मेक रिस्पॉन्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी डिजास्टर है जहाँ पे आपको लंबी अर्ली वार्निंग नहीं मिलने वाली है, बहुत कम वक्त मिलता है, तो खुद रिस्पॉन्स करने की आदत को अपने नेचर में बदलना होगा। आपको डूज एंड डोंट्स पता होनी चाहिए, लोकल लेवल पे मिटिगेशन आना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी के द्वारा, लोकल एकेडमिया के द्वारा और स्थानीय एजेंसी के द्वारा बहुत आवश्यक है। अगर आप गांव में जाएंगे तो आपके जो पुराने लोग हैं, बूढ़े दादा लोग हैं, वो देख के बता देंगे कि इस बादल से लाइटनिंग होगी, इस बादल से लाइटनिंग नहीं होगी। इस तरीके का कैपेसिटी बिल्डिंग हमारा भी होना चाहिए। जहां तक लाइटनिंग अर्ली वार्निंग की बात है, ये जब भी लाइटनिंग होती है तो आपको नेचुरल अर्ली वार्निंग मिलती है। मैंने आपको बताया काले घने बादल होंगे, आप हल्की हल्की हवा चलेगी और आपको गुदगुदाहट सी महसूस होगी और आपके बाल खड़े हो जाएंगे, आप बिजली की चमक को दूर आकाश में देख पाएंगे। तो ये नेचुरल अर्ली वार्निंग सिस्टम है। 5 सेकेंड रूल, ये 5 सेकेंड रूल लाइटनिंग की जब फ्लैश आपको दिखती है और जब उसकी आवाज सुनाई देती है, इन दोनों के अंतर को ध्यान में रख के बनाया गया है। जब भी आसमान में फ्लैश दिखाई देती है, आप गिनती शुरू करें, 1 2 3 4 5। अगर 5 गिनने के बाद आपको आवाज सुनाई देती है, मतलब आकाशीय बिजली आपसे 1 माइल दूर है। अगर 10 के बाद सुनाई देती है तो 2 माइल दूर है। अगर 15 के बाद सुनाई देती है तो 3 माइल दूर है। इस समय का उपयोग आप अपने आप को सुरक्षित स्थान पे ले जाने के लिए कर सकते हैं। ज्यादा समय मिले तो अपने आसपास अपने परिवार के लोगों को, साथ काम कर रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाने पे कर सकते हैं। जहां तक लाइटनिंग अर्ली वार्निंग की बात है, डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने आपको बताया, लेकिन
वो काफ़ी मॉडेस्ट थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो विश्व का एक अनूठा लाइटनिंग फोरकास्ट सिस्टम करता है, और इसको फोरकास्ट करने में हमारे सैटेलाइट, रडार, लाइटनिंग डिटेक्शन सेंसर्स जो IITM के द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं, और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस और अंतर्राष्ट्रीय भी जो सूचनाएं हैं, इन सारी सूचनाओं का समावेश करके भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आपको लाइटनिंग अर्ली वार्निंग देता है। ऐसा इनक्रेडिबल, अतुल्य फोरकास्ट करने वाला सिर्फ ये इकलौता एजेंसी है जो दुनिया में है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि और हमारे लिए ब्लेसिंग है। मैं सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि IMD की इस जो फोरकास्ट है, ये एक मोजाइक डेवलप होता है और एक API बनती है, और उस API को डायरेक्ट आप अपने EOC में लें और उससे आप अर्ली वार्निंग अपने यहाँ जनरेट कर सकते हैं। ये जो भारत सरकार की ओर से अरबों रुपए खर्च किए गए हैं, उनका लाभ उठाइए और अपने यहाँ अर्ली वार्निंग कीजिए। जहाँ तक लाइटनिंग डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क है, तो आपको पता है ये लखनऊ में रडार, डॉपलर वेदर रडार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए पटना, भोपाल, जयपुर, दिल्ली, मुक्तेश्वर, ये सारे रडारों का सहारा लिया जाता है। जहाँ तक लाइटनिंग डिटेक्शन सेंसर की बात है, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में 5 सेंसर अभी लगे हुए हैं, लेकिन और 9 दूसरे सेंसर हैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स में, जिससे उत्तर प्रदेश को लाइटनिंग की अर्ली वार्निंग दी जाती है। जहां तक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का नेटवर्क है, ये IMD का 42 वेदर स्टेशन का नेटवर्क है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं अनुरोध करूंगा कि ये सारे नेटवर्क आप अपने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में लें और इसे अर्ली वार्निंग जनरेट करें। डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने आपको इस पर काफ़ी बताया है, और ये सारे IMD की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। दामिनी ऐप के बारे में बता चुकी हैं मेघदूत। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। ये हमारे आपदा प्रबंधन सिस्टम की कमजोर कड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास बहुत अच्छा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, वो शासन विभाग के पास है। इसका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत लेवल पे डिसेमिनेशन इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के द्वारा हो सकता है, और ये इंस्टेंट होना चाहिए। ये पूरे लाइटनिंग, चूंकि एक शॉर्ट टर्म प्रक्रिया है, बहुत कम समय मिलता है इसको डिटेक्ट करके भविष्यवाणी करने का। इसकी ऑपरेशनलाइजेशन, ये जो जानकारी है, इसको अंतिम किसान तक, अंतिम गाय बैल चराने वाले तक, पशुओं तक पहुंचाने में कम से कम समय लेना, ये तभी संभव होगा जब एक बढ़िया इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हर स्तर पे हम क्रिएट कर पाएंगे। और इसके बाद डिसेमिनेशन बहुत जरूरी होती है। डिसेमिनेशन के लिए कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल भारत सरकार ने जारी कर दिया है, राज्य स्तर पे इसे लागू करना चाहिए। साथ साथ लाइटनिंग अर्ली वार्निंग के लिए पॉइंट अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये क्रॉपसी ने अभी इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किया है, और कई लोग इसे विदेशों से आयात करते हैं, लेकिन हम लोगों ने काफी कम पैसे में इसको बना के अभी हम रोल आउट इसे कर रहे हैं। डिसेमिनेशन के लिए गाँव में माइक्स होनी चाहिए, इनोवेटिव सिस्टम होना चाहिए, और इसका ट्रायल हमने राजस्थान स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ करके, जो लोग 1.25 करोड़ रुपए बाहर से मंगा रहे थे, हम लोगों ने 4 लाख रुपए में एक स्पीकर और विजुअल सिस्टम CCTV के साथ भी दिया हुआ है। जहां तक लाइटनिंग डिटेक्शन की बात है, मैं आपको बताऊं, जो सैटेलाइट के द्वारा लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो अभी भारत में अभी नहीं आया है। लेकिन मैं उसकी बात करूं, US में पिछले वर्ष 768 किलोमीटर लंबा लाइटनिंग फ्लैश दिखाई दिया था। मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाह रहा हूं कि जो 2018 की उत्तर प्रदेश की घटना थी, या जो 25 जून 2020 बिहार की घटना थी, या जो बहुत संख्या में अचानक लोग मर जाते हैं, उसका कारण होता है लाइटनिंग का लंबा फ्लैश। और ये डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप जान को बचा सकते हैं। मैं चाहूंगा स्टेट IMD के साथ इन पे काम करें। हमारा जो इस क्षेत्र में अगला कदम हो रहा है, सेल्फ रिलायंस इन अर्ली वार्निंग एंड डिसेमिनेशन सिस्टम। अभी तक जितने उपकरण थे, ये सारे विदेश से आ रहे थे। हम इनकी कंप्लीट भारत में ही इनको मैन्युफैक्चरिंग की हमारी कोशिश है। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक अलर्ट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, दामिनी मोबाइल ऐप, और ये सारे ऐप अभी अन्य भाषाओं में आएंगे, और आत्मनिर्भर भारत अप्रोच अर्ली वार्निंग में भी हमारा होने वाला है। लाइटनिंग रिस्क वल्नरेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे आर्मी में हमेशा होता है खबर दुश्मन की, वैसे ही आपदा में होता है हम पहले
डिजास्टर के बारे में उसका रिस्क असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट अवश्य करें। जहाँ को तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, और ये राज्य नहीं, एक देश से भी बड़ा है। यूरोप के कई देश इसके छोटे हैं। जहाँ तक इसके हाइड्रो ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करो, तो इसे 4 भागों में सीधा बांटा जा सकता है। ये हिमालय की तराई वाले शिवालिक फुटहिल्स, ये विंध्य हिल्स, और ये मध्य उत्तर प्रदेश जो रिवर बेसिन्स हैं, गंगा यमुना की रिवर बेसिन्स, और ये शिवालिक रेंज, या ये सारे जो एरियाज हैं, इनको हम अलग अलग 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटते हैं। और इन सारे अलग इलाकों में लाइटनिंग का जो अकरेंस है, होता है, वो काफ़ी अलग अलग पैटर्न है, जिसका हमने एनालिसिस किया है, माइक्रो जोनेशन किया है। और अगर आप इन सबों का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो रिवर बेसिन क्षेत्र हैं, दोनों में लाइटनिंग का प्रभाव है। पहाड़ी क्षेत्र में लाइटनिंग होने की संख्या ज़्यादा है, रिवर बेसिन क्षेत्र में लाइटनिंग कम हो रही है, लेकिन चूंकि वो चारों ओर फैलती है, इसीलिए वहां पे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके की स्थानीय भौगोलिक लाइटनिंग रिस्क असेसमेंट बहुत आवश्यक है। जहां तक मैं पूरे उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट एंड सॉइल पैटर्न की बात करूं, तो आप देखेंगे सॉइल का जो रेजिस्टेंस है, वो एल्यूवियल सॉइल में या नमी वाली सॉइल में काफ़ी कम रहता है। उसके कारण जो आसमानी बिजली आती है वो तुरंत अर्थ कर जाती है, लेकिन जो पथरीले इलाके हैं, जो जैसे हमारा विंध्य का इलाका है, लैटराइट रॉक्स है, यहाँ पे सॉइल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। और इसी के कारण जब लाइटनिंग करती है तो धरती या घर में गर्मी होती है और उससे आग भी लग जाती है। जहाँ तक मोर्टेलिटी की बात करें, तो हिंदुस्तान में 35% डेथ्स लाइटनिंग से होती है। और उत्तर प्रदेश में हमेशा आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में मौत हो रही है। इसका कारण सबसे बड़ा प्रदेश का बहुत बड़ा होना है। इससे छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ ज़्यादा लाइटनिंग होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि एक बहुत बड़ा प्रदेश है, इसीलिए ये संख्या ज़्यादा दिखती है। जहाँ तक 20 साल के एवरेज की बात करें, तो उत्तर प्रदेश का एवरेज लाइटनिंग 195 6.4 आता है। और ये 20 साल के मोर्टेलिटी की का डेटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ तक हम डिस्ट्रिक्ट वाइज मोर्टेलिटी की बात करें, तो हमारे ये जो विंध्याचल वाले जिले हैं, सोनभद्र, प्रयाग, फतेहपुर, गाजीपुर, ये सारे जिले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लाइटनिंग का असर दिख रहा है। मैं अगर एनालिसिस ऑफ मोर्टेलिटी करूँ, तो उत्तर प्रदेश में जो फ्लैश की इंटेंसिटी है, वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 0.7 है फ्लैशेस पर स्क्वायर किलोमीटर। लाइटनिंग पॉपुलेशन वल्नरेबिलिटी 0.69 है नहीं, लेकिन अगर इंडिया की हम बात करें तो हमारी लाइटनिंग की मोर्टेलिटी, मतलब 140 करोड़ लोगों में 1.4 डेथ पर मिलियन होता है। इंडिया का एवरेज है 1.492। डेवलपिंग कंट्री जो ऐसे अमेरिका, यूरोप है, उनका एवरेज है 0.1। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, सोनभद्र की 17.6, मतलब 10 लाख लोगों में 17.6 व्यक्ति प्रति वर्ष लाइटनिंग के शिकार होते हैं। मिर्जापुर 14, प्रयागराज 12। इस तरीके की हमने एनालिसिस की हुई है। जहां तक एनिमल की बात करें, तो सीधी सी बात है, एक इंसान के मरने के ऊपर कम से कम 8 पशुओं की मौत होती है। और इसलिए होती है, मैंने आपको दिखाया, क्योंकि उनको स्टेप वोल्टेज बहुत ज्यादा लगता है। आपको जानना जरूरी है लाइटनिंग के बारे में। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग लाइटनिंग की मैपिंग कर रहे हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश सरकार लाइटनिंग के प्रति बहुत संजीदा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा योजना है, स्टेट एक्शन प्लान है और लाइटनिंग पे एसओपी फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अर्ली वार्निंग है। मतलब ये जो पूर्व सूचना लाइटनिंग आती है, उसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया है। दामिनी ऐप को पॉपुलराइज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लाइटनिंग अरेस्टर गांव गांव में लगाने की योजना तैयार कर रखी है। दूसरी एजेंसियों के साथ कोलैबोरेशन की जा रही है। मैं फिर दिखाना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री की कमिटमेंट। वो कमिटेड है कि उत्तर प्रदेश में लाइटनिंग से होने वाली मौत को हर तरीके से कम करना है, और उसके लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। जहां तक एनालिसिस की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में आप 3 साल में देखें, प्रत्येक वर्ष ये लाइटनिंग की संख्या बढ़ती जा रही है। जो दुनिया का एवरेज है, करीब 25% आकाश में जो बिजली बनती है वो जमीनी बिजली पे कन्वर्ट होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप संख्याएं देखेंगे, 2019-20 में 28% और 2021-22 में 29% है।
अगर आप ये सोनभद्र दक्षिणी उत्तर प्रदेश के इलाके में देखेंगे तो ये संख्या 35 से 40% है। जहां तक एनुअल थंडरस्टॉर्म की बात है तो ये देखिए 50 से 80 की धारा थी, जो कि अब बढ़कर लाखों में आ गई है। ये उत्तर प्रदेश का लाइटनिंग मैप है। और अगर लाइटनिंग एटलस को आप देखेंगे तो ये दक्षिण उत्तर प्रदेश है, जहां सबसे ज्यादा, अगर आप विंध्य का इलाका देखेंगे, सबसे ज्यादा लाइटनिंग की अकरेंस हो रही है। और ये जो सीजी लाइटनिंग का ट्रेंड है उत्तर प्रदेश में, माहवार मैंने आपको ट्रेंड दिखाया है। सितंबर महीने में सबसे ज्यादा है, 20-21 में जुलाई और सितंबर में होता है, 21-22 में फिर सितंबर में ज्यादा। और अगर आप तीनों महीने, तीनों साल का देखेंगे, 19-20, 20-21, 21-22, तो तीनों महीनों में अलग ट्रेंड है। लेकिन एक बात साफ है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने हैं जब सबसे ज्यादा लाइटनिंग होती है। ये पूरे ट्रेंड को हमने एक साथ रखा है और लाइटनिंग की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये राज्य बहुत बड़ा है, इसके जिले भी कई ऐसे जिले हैं जो तो कई भारत के राज्यों से बड़े हैं। तो उन जिलों का माइक्रो जोनेशन ऑफ हॉटस्पॉट, जो वहाँ वज्रपात की दृष्टि से प्रवण इलाके हैं, कठिन इलाके हैं, उनका माइक्रो जोनेशन बहुत आवश्यक है, खास करके सोनभद्र, मिर्जापुर, इन सारे इलाकों में। सीजनैलिटी, जो लाइटनिंग का जो मौसम है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बदलता है। टीयर बेस्ड लोकल अर्ली वार्निंग सिस्टम और पब्लिक अलर्ट सिस्टम की जरूरत है। डिसेमिनेशन उन लोगों तक अभी टारगेट किया जा रहा है जैसे किसान, कैटल ग्रेजर्स, फिशरमैन, जो लोग खुले में काम कर रहे हैं। जरूरी है आपको ये समझना कि उत्तर प्रदेश में लाइटनिंग होती क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बंगाल की खाड़ी लाइटनिंग का सबसे बड़ा सोर्स है इंडिया के लिए, और इससे उठने वाले भाप कॉन्टिन्यूअस आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पूरे पूर्वी भारत, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करते रहते हैं। दूसरा है अरब सागर से होने वाली हवाएं, इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लाइटनिंग की पूरी। तीसरी चीज है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये जो पाकिस्तान ईरान से होने वाली हवाएं हैं, ये हमारे नॉर्मल मौसम सिस्टम के साउथ वेस्ट मानसून के साथ इंटरेक्ट करती हैं, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं, और ये पश्चिम से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत को आजकल प्रभावित कर रही हैं। चौथा है, आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी में लाइटनिंग होती है। ये बेसिकली जो हमारे दोनों नीचे महासागर हैं, यहाँ एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, और इससे उठने वाली हवाएं सीधे नेपाल की तराई तक जाती हैं, हिमालय तक जाती हैं, और इससे उत्तर प्रदेश को प्रभाव पड़ता है। और उस वक्त भी आप देखेंगे सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर आता है और ये उस प्रभाव को और बढ़ाता है। तो ये बहुत आवश्यक है। पहले हमारे देश का मानसून, हमारे उत्तर प्रदेश का मौसम सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून या हिमालय से आने वाली हवाओं पर निर्भर करता था। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने जैसा देखा, और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इन दोनों से प्रभावित हो रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, इसका एक सामने परिणाम सामने आता दिख रहा है। और आपने देखा होगा कि लाइटनिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं, और उत्तर प्रदेश में भी ये घटनाएं काफी जोर से परिलक्षित हैं। कैलिफोर्निया की स्टडी तो कहती है कि 1 डिग्री तापमान बढ़ने पे 22 गुना लाइटनिंग बढ़ती है। लेकिन अगर हम एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट जो हमारी क्रॉप्सी की है उसे माने तो भारत में 34% लाइटनिंग की बढ़ोतरी हुई पिछले साल, और उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। ये पूरे देश का है, लाइटनिंग में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है। और ये जब भी हम रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बहुत जरूरत हो जाती है। आप कैसे घर में रहते हैं, पक्का मकान, सुरक्षित स्थान, लेकिन क्या वो हमारे देश में है? नहीं। गांवों में कच्चे घर हैं। हमारे लोग क्या पक्के मकानों के अंदर ही काम करते हैं? नहीं। जो खेती करते हैं वो खुले आकाश के नीचे खेती करते हैं। और इसी के कारण लाइटनिंग की जो असर है, पिछले 3 साल के रिपोर्ट में हमने देखा 96%, 96% जो कैजुअलिटी है वो गांवों में हो रही है। फार्मर्स हैं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, महिलाएं 34%, बच्चे 35% प्रभावित हो रहे हैं। डायरेक्ट स्ट्राइक से सिर्फ 22% लोगों की मौत होती है, बाकी लोगों की मौत इनडायरेक्ट स्ट्राइक से होती है। लाइटनिंग स्ट्राइक से
बच्चों के मानसिक विकास में कष्ट होता है। ये रीडर्स डाइजेस्ट का आर्टिकल है और मैं हमेशा दिखाता हूँ कि आप जरूर देखें। ट्राइबल क्षेत्र में लाइटनिंग का काफी प्रभाव है और जो सोनभद्र के इलाके हैं उन इलाकों में जो 70 से 75% कैजुअलिटी है वो जनजाति लोगों की है। ये एनिमल डेथ की बात है और ये एनिमल डेथ के लिए हमने सुरक्षा के उपाय रखे हुए हैं कि आप हमेशा, जैसे गौशाला है तो उसकी शेड प्रॉपर बनाएं, वहां पे लाइटनिंग अरेस्टर जरूर लगाएं। कभी भी अपने जानवरों को खुले में बांधकर पेड़ से नहीं छोड़ें और उनको हमेशा सुरक्षित स्थानों पे रखें। बहुत जरूरी हो जाता है कि एक ओनरशिप बेस्ड लाइटनिंग एक्शन प्लान बने। मिस्टर हरि कुमार ने एनडीएमए का गाइडलाइन पढ़ा था और उसके द्वारा हर राज्य में होना जरूरी है। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जिससे वज्रपात सुरक्षा रथ है जो लॉन्च किया जा रहा। स्टेट लाइटनिंग एक्शन प्लान, काल वैसाखी के दौरान इसे जरूर करना चाहिए। हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन, लाइटनिंग अरेस्टर जरूर लगने चाहिए। विलेज गांवों की लाइटनिंग रिस्क मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए। स्कूल सेफ्टी में लाइटनिंग जरूर होना चाहिए, जैसा कि आपको बताया कि हमारे वाइस चेयरमैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों में लाइटनिंग सेफ्टी प्लान जरूर लगाया, अभी अभी शुरू किया गया है। फार्मर के लिए लाइटनिंग सेफ्टी प्लान जरूर होना चाहिए। जहां तक मिटिगेशन की बात है, ये हमारे देश का सबसे ज्यादा विवादित और हमारी कमजोरी रही है। पूरे देश में लाइटनिंग प्रोटेक्शन की कवरेज सिर्फ 2% है और इसका कारण है प्रॉपर तरीके से लाइटनिंग असेसमेंट नहीं होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट हम नहीं करते और हम प्रोटेक्शन डिवाइस सही तरीके से नहीं लगाते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी बेस्ड रिस्क असेसमेंट करें। हम अपने गाँव में जो खतरनाक इलाके हैं, जैसे पहाड़ी की चोटी है, ये अकेला पेड़ है, ये तालाब है, इन सब का चित्रण मैपिंग करें और सभी लोगों को बताएं कि ये खतरनाक इलाके हैं। और अपने गाँव में हम जो सुरक्षित इलाके हैं, जैसे हमारे स्कूल हैं, हमारे पंचायत भवन हैं, पक्के मकान हैं, उनके बारे में जानकारी जरूर लें। और हमारे खेतों में हम लाइटनिंग सेफ शेल्टर बनाएं। ये पहाड़ी की जो तलहटी है ये सुरक्षित स्थान है, ये पता होना बहुत जरूरी है। जब लाइटनिंग सवेरे होती है, मॉर्निंग में होती है, तो हमेशा आप देखेंगे लाइटनिंग पहाड़ी की पश्चिम में, पूर्वी इलाके में होती है। तो उस वक्त हमें अपना खेती का काम या जो भी क्रियाकलाप है पहाड़ी के पश्चिम में करना चाहिए। अगर सेकेंड हाफ में लाइटनिंग होती है तो पहाड़ी के पश्चिम में लाइटनिंग होती है इससे। और तो जब भी हम अगर सेकेंड हाफ में खेती कर रहे हैं या लाइवलीहुड एक्शन कर रहे हैं तो हम पहाड़ी के पूर्वी इलाके में करें। ये लाइटनिंग रिस्क मैप है, ये लोकल लेवल पे सभी से शेयर करना चाहिए। और लाइटनिंग प्रोटेक्शन की जहां तक बात है, मैंने आपको बताया लाइटनिंग वर्टिकली और लैटरली दोनों स्ट्राइक करती है। वर्टिकली सेफ्टी के लिए आपको लाइटनिंग कंडक्टर या अरेस्टर या फैराडे केज जरूर बनाना चाहिए और लैटरल स्ट्राइक के लिए आपको घर में सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जरूर लगाना चाहिए। जहां तक डिजाइन ऑफ लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस है, इसके लिए मैं कुछ तथ्य बताना चाहूंगा कि अलग अलग एसेट के लिए अलग प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। एक साइज सभी एसेट के लिए नहीं होता है, इसीलिए जरूरत हो जाता है कि आईईसी 62305 या यूरोपियन स्टैंडर्ड के अनुसार रिस्क असेसमेंट जरूर करें। एक्सपोजर रिस्क, कितनी लाइटनिंग पर सेकेंड हो रही है उसे जरूर करें और आप किस टाइप के एसेट को प्रोटेक्ट करने हैं उसका ध्यान जरूर रखें और थर्ड पार्टी ऑडिट जरूर कराएं। लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए जानना जरूरी है कि सबसे पहले ये लाइटनिंग रॉड होती है जो लाइटनिंग को कैच करके अर्थ करती है, नीचे डाउन कंडक्टर आते हैं और तीसरी अर्थिंग होती है। तो तीन मुख्य हिस्से हुए, एयर टर्मिनल ये ऊपर का हिस्सा, ये लाइटनिंग को पकड़ने का काम करती है, ये तार जिसे हम डाउन कंडक्टर कहते हैं जो उसे नीचे जमीन तक लाती है, और ये अर्थिंग। ये तीन जरूरी हिस्से हैं लाइटनिंग के लिए। इनके जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। टाइपोलॉजी ऑफ एसेट, कौन सा एसेट है, वो घर है, छोटा मकान है, स्कूल है, इंडस्ट्री है, कार्यालय है, बहुत जरूरी है। लोकल ज्योग्राफिकल फीचर, पहाड़ी की चोटी है, खुले मैदान का इलाका है, वहाँ की क्लाइमेटोलॉजी ऑफ लाइटनिंग क्या है, बहुत जरूरी है। जहाँ तक एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी सर्च की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने अपने पूरे रिसर्च में पाया उत्तर प्रदेश में 130 से 310 किलो एम्पियर लाइटनिंग हो रही है,
लेकिन हिंदुस्तान में जितने भी लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस बन रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बन रही है या कहीं, वो सारे इस टेस्टिंग कैपेसिटी से कम की बन रही। इसका कारण ये है कि हमारी जो सेंट्रल CPRI है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की लेबोरेटरी है, वो सिर्फ 40 किलो एम्पियर तक टेस्ट कर सकती है। तो हमारे यहाँ लाइटनिंग प्रोटेक्शन की डिवाइस सही नहीं बन रही है। इसके लिए अभी क्रॉप्सी के द्वारा एक लैब सेटअप किया जा रहा है, जिससे कि हम हाई वोल्टेज लैब सेटअप करके लाइटनिंग प्रोटेक्शन को हम कंट्रोल करेंगे। दूसरा, सॉइल रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा कि हमारी धरती सूखती जा रही, कंक्रीटाइजेशन बढ़ रहा है, हमारा वाटर टेबल नीचे जा रहा है, नदियां सूख रही हैं, सरफेस वाटर कम हो रहा है। इसके कारण सॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और हमारे अनुभव में हमने उत्तर प्रदेश का पूरा माइक्रोजोनेशन किया है और सॉइल रेजिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी में राइज हुआ है। हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, हम अभी हरि कुमार जी सेफ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, जब हम रेजिलेंट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल सेफ्टी की बात कर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी की कोई टेस्ट नहीं होती। और पूरे घर में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स लगते हैं, विदाउट इलेक्ट्रिकल कंपैटिबिलिटी के लगते हैं। इसके कारण हमेशा हमारे घर के छोटे छोटे उपकरण, टीवी, लैपटॉप, फ्रिज, ये खराब होते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हरि कुमार जी डाटा दिखा रहे थे, 1981 से 2010 का था, और उसमें लाइटनिंग का एम्पलीट्यूड 20 से 80 किलो एम्पियर था। मैं जो 2021-22 आज 40 साल के बाद डाटा दिखा रहा हूं, करंट एम्पलीट्यूड 130 से 310 किलो एम्पियर है। तो इतना बदलाव लाइटनिंग में आ गया है, और यही बदलाव हमारे लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम में आना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसे रेगुलेट करे और उत्तर प्रदेश में सही लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाए। जहां तक लाइटनिंग अरेस्टर की बात है, ये कन्वेंशनल सिस्टम है IEC 62302, जो फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, और ये आमतौर पे घरों पे इस्तेमाल होता है। जहां तक ये फैराडेज केज की बात है, ये फैराडे केज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बनाया था मैश सिस्टम, और एफिल टावर भी जब शुरू में बना था तो उसमें फैराडे केज ही लाइटनिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था। ये तीसरा सिस्टम है यूरोपियन सिस्टम, जिसे अमेरिकन सिस्टम अपोज करता है, और इन दोनों की आपसी लड़ाई में ये पूरे हमारे भारत देश में लाइटनिंग प्रोटेक्शन में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मैं आपको बताऊं, ये मॉडर्न डिवाइस है। अब तक जो मैंने आपको ये डिवाइस बताए, ये पैसिव डिवाइस है। अगर इस पर लाइटनिंग टकराएगा यहाँ पे, तभी ये अर्थ होगा। अगर आसपास लाइटनिंग होती है तो इनमें कोई असर नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक ये अर्ली स्ट्रीमर है, ये चारों ओर एक पॉजिटिव क्लाउड बनाते हैं, और कहीं भी आसमान में लाइटनिंग नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हो, वो उसको अरेस्ट करते हैं। नेगेटिव चार्ज है तो उसको अरेस्ट करके अर्थ कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। ये मैं कल की तस्वीर दिखा रहा हूँ एफिल टावर की। एफिल टावर पे कल लाइटनिंग हुई, और बाद में जब नया सिस्टम आया तो एफिल टावर में भी इन्होंने EAC सिस्टम लगा रखा है। विश्व में जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, भारत के पार्लियामेंट के ऊपर, हमारे कुतुब मीनार के ऊपर, बुर्ज खलीफा के ऊपर ESE ही लगे हुए हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, एमिनिशन डम्प्स हैं, वहाँ पे ESE लगे हैं। तो हर साइज के लिए अलग अलग लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ये लो कॉस्ट लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस हमने IEC 62305 के ऊपर डिवाइस किया हुआ है, और ये हम गाँवों में लगाने का काम करते हैं, और हर इलाके में 60 से 70 हज़ार रुपए के अंदर एक अच्छा लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस तैयार हो जाता है। ये आपने देखा होगा, गाँव में जो पोल्ट्री होती है, टिन रूफ होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अटैक होती है। इस तरीके का सिस्टम भी हमने बताया है। ये हालांकि ये टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है, लेकिन हमने जब से इस सिस्टम को ईजाद किया है, इस सिस्टम से गाँव में लोगों की जान बच रही है, और आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये गाँव की तस्वीर है, ये बंगाल के स्कूल की तस्वीर है जहाँ हमने लगाया, ये सुंदरवन की तस्वीर है, ये ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं। मैं आपको बताऊं, लाइटनिंग अरेस्टर या कंडक्टर बहुत ज़रूरी है, आप अवश्य लगाएं। ये ध्यान रखें कि जब ये लगाएं तो सबसे ऊपर होना चाहिए। ये कैपेसिटी बिल्डिंग गाँव में बहुत ज़रूरी है। 5 सेकेंड रूल, अर्ली वार्निंग, पोस्टर्स, पेड़ के नीचे नहीं खड़े रहना, लाइटनिंग के दौरान सेल्फी ना लें, और जितने लाइटनिंग की अर्ली वार्निंग रिसोर्स हमने डेवलप किए। क्रॉप्सी का उद्देश्य है सरकार के द्वारा किए गए काम को कॉम्प्लीमेंट करना। हमारे सारे काम को हमने NDA में, भारतीय मौसम विज्ञान
इनके साथ मिलके हमने किया है, और हमारा उद्देश्य है कि उनके किए गए काम को एक कलेक्टिव अप्रोच लेकर आम वल्नरेबल कम्युनिटी तक पहुंचना। खिड़की दरवाजे बंद रखें, कभी नहीं नहाए, ऐसे बैठे। ये इसलिए बैठे, आपने देखा होगा चिड़िया जब अकेले तार पे बैठती है तो उसे कोई करंट नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि उसके पंजे इकट्ठे होते हैं। तो ये जो पैर चिपका के बैठने हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि बिजली पार हो जाए, स्टेप वोल्टेज ना क्रिएट हो। आपकी कार सेफ है, घर के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर कंडक्टर जरूर लगाएं। वे फॉरवर्ड, रिड्यूस लाइटनिंग डेथ्स टू 0। कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच बहुत जरूरी है। लाइटनिंग की गांव के स्तर पे रिस्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, इन्वेस्ट इन लाइटनिंग अर्ली वार्निंग एंड डिसेमिनेशन सिस्टम, स्पेशली आईएमडी के साथ मिल के करें, आईएमडी के तकनीकी सुझाव के साथ करें। पब्लिक अलर्ट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जरूर हो। मिटिगेशन, मास स्केल पे लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस लगाने की कोशिश हो। कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, एजुकेशन, ये अर्ली वार्निंग के लिए एजुकेशन हो, अलर्ट सिस्टम के लिए एजुकेशन हो। मिटिगेशन, लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस अरेस्टर लगाने के लिए कम्युनिटी को सिखाया जाए। लाइटनिंग ऑडिट जरूर हो, रिस्क ट्रांसफर का मैकेनिज्म जरूर डेवलप हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, क्लाइमेट एक्शन प्लान हो, लाइटनिंग डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम लोग क्रॉप्सी के द्वारा एक नेशनल लाइटनिंग रिस्क इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि ये राज्य स्तर पे भी लाइटनिंग डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जरूर तैयार हो। माइक्रो लेवल पे काम करने के लिए माइक्रोजोनेशन ऑफ हॉटस्पॉट, लाइटनिंग अर्ली वार्निंग कम सेफ शेल्टर बनाया जाए। इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी मैपिंग, ये हमने उत्तर प्रदेश के लिए कर लिया है। सॉइल रेजिस्टेंस मैपिंग, सेटअप लाइटनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, लाइटनिंग पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, मेन स्ट्रीमिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग को अन्य आपदाओं के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में, आपदा प्रबंधन या अन्य विभागों के साथ, स्पेशली बिल्डिंग बायलॉज में तब्दीली, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के साथ काम, एनर्जी, फार्मर, एनिमल हस्बेंड्री, टेम्पल, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ काम करना, क्योंकि हमारी सारी कैजुअलिटी गाँव में है और गाँव में पहुंचने का तरीका पंचायती राज है, तो उनके साथ काम करना बहुत जरूरी है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौत से 100% बचा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को 80 साल लगे, उनके मौत की संख्या 1940 में 412 थी और 2021 में वो घट के सिर्फ 21 पे आ गई। तो इस सफर को तय करने में हमें भी सब्र के साथ आगे बढ़ना है, जो तकनीकी जानकारियां हैं उनको लेकर बढ़ना है और एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ बढ़ना है। और हमारी सारी जानकारी लाइफ सेफ्टी के लिए है, सरकार, जनता, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, एकेडमिया, सभी के लिए है। धन्यवाद। Thank you. Thank you so much, Colonel Sanjay Srivastava, sir, for this wonderful, comprehensive presentation on thunderstorm and lightning, particularly in reference to the Uttar Pradesh state. So thank you so much, sir. As of now, I can't see any. There is no question for you. If there is any question, we'll get back to you through email. And sir, thank you so much once again for sparing your time for us. There is one question: how to have proper earthing in houses to avoid lightning and short circuit residential building? What should we do first if there is lightning in our area or if it strikes residential houses? This question is from Abhijit L. Kotian. Okay, sir. Okay. So the most important part is the lightning risk assessment of your house. So you see what is the height of your house. It is double storied or triple storied. Is it a pakka house or a kacha house? You have to obtain two scientific data. One is what is the electrical sensitivity, lightning occurrence. What is the current threat? What level of, what ampere of current you are getting? Based on that. And second is the soil resistance. What is the soil resistance you should measure of the area around your house? And then you should consult a proper design engineer who can design a proper lightning protection device. Lightning protection device, I told you there are three types of things which matter.
One is the air terminal, which is on top. Second is the down conductor. And third is your earthing. These devices should be tested properly, and you should get it installed under your supervision, under a supervision of a technically sound person. And once it is installed, then a testing is done, whether it is really catching the lightning, taking it down to earth and earthing it. In case there is any shortfall, then a lightning arrestor can attract more hazard. So a proper installation is very important. In case you have money, you should go for lightning arrestor. Lightning arrestor, it comes slightly expensive. For a house, it costs around 2 to 2.5 lakh. So you should go for a vertical lightning protection by installing lightning arrestor, oblique conductor. And for lateral protection, you should always install surge protection device. There are 3 types: A types, B types, and composite types. For a normal house, which has a 2 kilowatt consumption of electricity or up to 5 kilowatt, the cost of a surge protection device is 10,000 rupees. Please buy a branded, tested lightning protection device, whether it is vertical lightning protection device or the lateral or the surge protection device. All these devices should be tested. When you buy, please see the name of the testing agency and for what voltage it has been tested. Today, as of now, every device must be tested minimum for 200 kiloampere and at least for 1.5 lakh volt. This much of electric volt testing is mandatory. I hope I have answered you, Abhijit, comfortably. Thank you, sir. Thank you so much for answering the question. Now, we shall move for the to conclude this webinar, for which I would like to propose the vote of thanks to the participants and other dignitaries. So it gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this particular webinar. So first of all, I would like to say thanks to the Executive Director of National Institute of Disaster Management, who provided us such a national level platform for organizing this webinar. Also, Lieutenant General R.P. Sahi sir, who is the Vice Chairman of UPSDMA, for accepting our collaboration, for actively accepting our collaboration request, and who also honored this webinar with his inspirational thoughts. So thank you so much, sir. Next, I would like to say thanks to Professor Surya Prakash, who is the head of the division, GMR division, who enlightened us through his kind words during the special address of this webinar. And sir, you are always there to support us and inspire us to do such webinar program. I would also like to say thanks to the Brigadier PK Singh, sir, who is the senior consultant at UPSDMA, who actively coordinated to make this webinar successful and on behalf of UPSDMA. And I would also like to say thanks to all the dignitaries, all the speakers who spared their time and shared their core knowledge with the participants in respect of thunderstorm and lightning. I would also like to say thanks to our panelists for their backend support, like Dr. Harjit Kaur, Sri Harihara Kumar Devra, Gautam, Miss Vinta Kumari, and A.L. Haldar sir, and also our distinguished speaker, Dr. Poma Sen Roy and Colonel Sanjay Srivastava sir. And also, I would like to say thanks to our participants who joined here virtually and made this event successful. So, with this word, I Ajit Batham signing off from this event. Prior to that, I would like to ask Brigadier PK Singh, are you there? Brigadier PK Singh, sir? Yes, Sir, I'm there. so would you like to add something, sir? Yeah, on behalf of UPSDMA, I also take this opportunity to thank everyone for making this endeavor a great success.
A special thanks to the speakers who spared their valuable time and delivered their thoughts, perception about this lightning and thunderstorm. And thanks to the participants who actually participated for this webinar. Only thing is that we could not take their questions because of shortage of time. I'm sure they would have put on the chat box. We shall be able to answer that subsequently. And once again, thank you very much. Thanks NIDM. Thanks Professor Surya Prakash ji for his guidance and taking this initiative for the UPSDMA. And wish you all the best, all the success, and all our future endeavors as far as disasters are concerned. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. So now I'm signing off with this event. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you very much, Ajit, for all wonderful bouquet you presented on lightning.